बुक्स बैलेंस शीट और पीएनएल डालना पड़ेगा। सर एक बार ये ना विद्या खन्ना जी को अनम्यूट करें, आई थिंक उनका कोई फॉलो अप मैं कर देता हूं सर, पहले शुरू कर दें सर, बाद में ले लेंगे क्वेश्चन। जैसे आपकी मर्जी हो। प्लीज सर, प्लीज। Very good evening, welcome all of you. I Rajesh Agrawal once again welcome all of you on behalf of Pusa Road CP Study Circle on today's webinar on issues in filing of ITR forms. And on this subject, one and only our elected member, regional council member C. Avnash Gupta ji is with us. And there is no need to introduce him, but few lines I would like to say about him. He is a elected member of our Northern India Regional Council of ICI. He did BCom honors from SRCC and awarded the best student of the college. He did CA and got place in merit list of CA final. Law graduate, LLM from Guyana University. He is a senior partner in APT and Company LLP, having offices in almost all cities, major cities of India. He did international taxation course from Tax Law, Guyana, Australia. He delivered more than 1,300 lectures on various subjects of taxes. He is dealing in international taxation, transfer pricing, and have a specialization in ITAT and CIT appeals. And this is the brief profile of our Avnash ji. I welcome all of you, sir, and once again Avnash Gupta ji and Dhamija ji, Kohli Saab, Mudit ji, and Jagdish ji, and all the attendee. And with this, over to Avnash ji for deliberation, sir. थैंक यू राजेश जी फॉर इनवाइटिंग मी अगेन टू योर स्टडी सर्कल। अब ये तो सर बिल्कुल घर की तरह ही लगता है, इतनी बार आपके स्टडी सर्कल में एज अ स्पीकर एज वेल एज अटेंडी आते हैं, एंड एवरीबॉडी इज नोन टू मी पर्सनली आल्सो, सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। रिस्पेक्टिव धमीजा सर, कोहली साहब, मुदित भाई, जगजीत जी, ऑल गुड इवनिंग टू ऑल फेलो मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड माय फेलो कोलीग्स। Sir, today the topic given to me is very unique, and Rajesh ji have told me to take all the practical difficulties and all the changes what have been there in filing of the present cycle of this ITR forms. तो अभी जो हमें ITR forms भरने हैं उसमें जो जो हमें दिक्कतें आ रही हैं या जो probable mismatch हो सकते हैं while filing the ITR, तो वो उसके लिए राजेश जी ने कहा कि एक स्पेशल सेशन हमें रखना है। इसके अलावा एट द एंड ऑफ द सेशन अगर किसी की विवाद से विश्वास स्कीम में फाइलिंग में कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है, सो देन दैट का आल्सो वी कैन डिस्कस इन अ Q&A सेशन। सर जितना भी टाइम राजेश जी ने अवेलेबल कराया है इस सेमिनार में, तो माय रिक्वेस्ट इज कि हम उसमें दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट हाफ आई विल टेक majorly what are the changes in the ITR and what things to be kept in mind while filing the ITR, and second half we will take Q&A session one by one. So अगर राजेश जी आप एग्री करो और आप इजाजत दो। सर प्लीज सर प्लीज। अगर मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ रिगार्डिंग दी चेंजेस इन ITR फॉर्म्स एंड थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड while looking at the changes. So can you see my presentation? Yes sir, yes boss. So the first and the foremost thing that will come in the ITR filing is the selection of the right form. Sir, majorly मैंने ऐसा देखा है कि about 10 to 15% of the defective return comes from CPC only because of the selection of wrong ITR form. So हम गलती से ITR 1 भर देते हैं, 2 भरना था, 2 भर देते हैं, 3 भरना था, 7 में गलती होती है, etc etc. So there is first thing what is most important is the taking and filing the correct ITR form. जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जो भी हमारे मेजर प्लेयर्स के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, while generating the XML forms they generally give 2 or 3 options that okay you select ITR 1 or 3 or 1 or 2 and 3 in case of individual. Sometimes it say 2 3 4, sometimes it say 2 5 etc etc. So these are the, and then we generate one form which we believe okay it is the right ITR, and it got generated also and we file it also with the income tax department, and subsequently after 30 days or whenever the return got processed, we got a defective return notice from the CPC saying that the wrong ITR form is being used. So that is why the first and the foremost thing while filing the return, we should know
that which ITR to be filed in which case, and only after selection of the only after knowing the basic difference between all ITRs and the eligibility, we will be able to process our return or get our return of my SSC filed in a correct way. So we know there are 7 ITRs, ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 relates to the entities who are claiming exemption either in case of section 1112 exemption or 1023C or any other section. So all those who are claiming exemption, they have to file ITR 7. All company SSCs has to file ITR 6. All firms, AOP, BOI or societies etc. who are not claiming exemption has to file ITR 5. So 5 is for AOP, BOI, firms, LLPs, 6 is for companies, and 7 is for exempted entities. Now for individuals, we have ITR 1, 2, 3 and 4. So ITR 1, 2, 3, 4 are ITRs only for the individuals. Now if any individual, any SSC, individual or HUF, then if they have any kind of a business income, then they are prohibited from filing ITR 1 and 2. Then it should be either ITR 3 or ITR 4. So only 2 ITR is there for the business income. So many times people file ITR 2 or ITR 1 in case of business income by putting it in any other section. Please do not do it. Or for the purpose of business income, only 3 and 4 are eligible. Now there is also sometimes there is a mismatch between ITR 1 and ITR 2. So in some cases, people have filed ITR 1, however, they are liable to file ITR 2. So that's why we should know when we should file ITR 1 and when we should not file ITR 1. So in thumb rule, if we say thumb rule, all salaried employee having one house property, having agriculture income not exceeding 2,500 rupees have to file ITR 1. Or pensioners has to file ITR 1. Then in case of all individuals who are not liable or not required to file ITR 1 and who do not have business income has to file ITR 2. So ITR 2 is technically for all individuals in HUF other than having the business income. So business income है तो 2 नहीं file हो सकता. ITR 4 is only for the presumptive income of individual HUF as well as firms including LLP. So 4 is for presumptive income under section 44 AD, ADA, AD and AE. Now ITR 3 is for all the residual incomes of individual or HUF having the business income. अब एक सर राजेश जी एक कॉमन क्वेश्चन आता है हमारे पास जो कई लोग मेरे से पूछते हैं कि सर क्या मैं ITR 3 में प्रिजम्पटिव इनकम की डिटेल डाल सकता हूं along with if I am a partner in a partnership firm and I am earning the remuneration from the firm, I am having the interest on capital or from the firm, or I am also having the share of profit from that firm. Answer is yes. ITR 3 is the most comprehensive form as far as the individual is concerned. So ITR 3 के अंदर आप presumptive income के भी चीजें डाल सकते हैं, आप 44 AD भी ले सकते हैं, 44 ADA भी ले सकते हैं, AE भी ले सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म से रिसिप्ट्स हैं, आपका पार्टनरशिप फॉर्म से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या पार्टनरशिप फॉर्म से शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तो उसकी डिटेल भी आप ITR 3 में डाल सकते हैं. अगर किसी एसएससी की प्रिजम्पटिव इनकम है और उसकी सैलरी इनकम भी है साथ में, so there might be possible there was an employee who is having presumptive income, might be consultancy income, might be the income from the business of shares, might be some other speculative business he have, then he is liable to file ITR 4. So ITR 4 में आप सैलरी की डिटेल भी डाल सकते हैं. तो अगर आपकी प्रिजम्पटिव इनकम है along with salary or house property or capital gain income or other sources income, then you are liable to file ITR 4. कैपिटल गेन अगर आपकी इनकम है तो आपको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा. तो ये हमारे इंडिविजुअल जो ITRs हैं उसके अंदर दिया गया है कि कौन से में क्या करना है. सिर्फ एक हमें कुछ चीजें वो ध्यान रखनी है कि इस साल और लास्ट ईयर ITR 1 का प्रोहिबिशन क्या है, और वही प्रोहिबिशन ITR 4 में भी डाला गया है. पहला उन्होंने कहा लास्ट ईयर तक ITR 1 and 4 can be filed by a resident individual. तो जो रेजिडेंट है वो इस ITR 1 को और 4 को फाइल कर सकता था, चाहे वो ऑर्डिनरी हो चाहे वो नॉट ऑर्डिनरी हो.
फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स जो अभी हमारे पास यूटिलिटी आई, इसमें नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो हैं, RNOR जितने हैं, उनको प्रोहिबिट कर दिया गया दैट दे कैन नॉट फाइल ITR 1 और ITR 4, दोनों चीजें नहीं फाइल कर सकते, उनको 2 और 3 फाइल करना है। अगर कोई पर्सन डायरेक्टर है तो लास्ट ईयर ही उसकी प्रोहिबिशन आ गई थी कि ITR 1 वो नहीं फाइल कर सकता अगर वो किसी कंपनी में डायरेक्टर है। अगर वो किसी कंपनी में किसी फर्म में पार्टनर है तो वैसे ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अपने पार्टनरशिप की रेवेन्यू, पार्टनरशिप का कैपिटल बैलेंस, पार्टनरशिप का शेयर ऑफ प्रॉफिट उसे देना होता है, तो वो इन दैट केस वो सिर्फ ITR 3 में ही अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। अब इन्होंने एक और नया अमेंडमेंट डाला, और अमेंडमेंट यहाँ पे नहीं आया, अमेंडमेंट आया था लास्ट टू लास्ट ईयर इनकम टैक्स एक्ट में, कि अगर किसी एसएससी का हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है तो वो लॉस जो है हाउस प्रॉपर्टी से या तो किसी और हाउस प्रॉपर्टी इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, उसके सेट ऑफ होने के बाद अगर कोई और लॉस बचा तो दैट इज अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम, बट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेट ऑफ अलाउड इज 2 लाख रुपीज। 2 लाख के ऊपर जितना भी लॉस होगा दैट विल कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, दैट इज एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 1920। सो मेरा मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी का 6.5 लाख रुपए का लॉस है, मेरी अदर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, एक घर से लॉस है, दूसरे घर से मेरी हाउस प्रॉपर्टी इनकम मान लीजिए 3 लाख रुपए थी, तो 6.5 लाख का लॉस मेरे 3 लाख से सेट ऑफ हुआ, इंट्रा हेड सेट ऑफ करा मैंने, और वो सेट ऑफ करने के बाद मेरा 3.5 लाख रुपए का नेट हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हुआ। उस 3 लाख में से 2 लाख रुपए मैंने सैलरी इनकम और एनी अदर हेड ऑफ इनकम के साथ सेट ऑफ किया, और 1.5 लाख रुपए का क्या हुआ, मुझे कैरी फॉरवर्ड मिल गया फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब जब मुझे 1.5 लाख रुपए का कैरी फॉरवर्ड मिला तो लास्ट ईयर हो सकता है मैंने ITR 1 फाइल किया हो, but now I have to brought forward this loss and set off in my ITR form. For that perspective they said कि अगर कोई ऐसा एसएससी है जिसका brought forward हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है ये वाले नेचर का, तो उसको भी उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया कि that they cannot file ITR 1 और ITR 4, तो दोनों चीजों का उन्होंने कहा कि वो फाइल नहीं कर सकता। बिजनेस के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 3 में कर दिया, और पार्टनरशिप के लिए भी 3 में कर दिया, ये ऑलरेडी है। प्रिजम्पटिव के लिए मैंने आपको बता दिया 4 में है, वो जो ऑलरेडी है। लिस्टेड शेयर्स हैं अगर किसी के पास, एनी काइंड ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स, अनलिस्टेड किसी भी कंपनी के शेयर्स हैं, तो भी वो ITR 1 और 4 फाइल नहीं कर सकता, उसे ITR 2 एंड 3 ही फाइल करना पड़ेगा। और अगर उसका किसी भी तरह का कोई कैपिटल गेन या लॉस है तो वो 2 और 3 में फाइल करेगा, 4 में फाइल नहीं कर सकता। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि हमें क्या क्या कब वो फाइल करना है, वो सारी चीजें, बाकी चीजें जो लास्ट ईयर थी वही सेम है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। 3 चीजें लास्ट ईयर एक इंट्रोड्यूस की गई थी कि अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है तो भी आप 1 फाइल नहीं कर सकते और 4 फाइल नहीं कर सकते। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है एसएससी की तो भी आप 1 और 4 फाइल नहीं कर सकते। और अगर किसी का कैरी फॉरवर्ड कोई बिजनेस लॉस है तो उसको भी हमने जो है 1 और 4 से प्रोहिबिट किया था, और वो तो हो भी नहीं सकता, रीजन बीइंग इन दैट केस वो 3 ही फाइल करेगा बिजनेस का अगर है। 1 हाउस प्रॉपर्टी का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अच्छा, ये नया एक और इम्पोर्टेंट आया है सर, अगर कोई प्रॉपर्टी जॉइंट ओनरशिप में है, सो अब जैसे राजेश जी और उनकी वाइफ जो है दोनों 50-50% ओनर हैं, और इनको कोई भी रेंट आता है और वो रेंट के पैसे जो है वो भाभी जी के हैं, उनकी इनकम से है, तो वो इनकम इनके हाथ में टैक्स नहीं होती, दैट विल गो टू हिज वाइफ्स अकाउंट। तो दो क्लबिंग वाले केसेस जितने हैं जहां पे भी इनकम क्लब हो रही है, चाहे वो स्पाउस की इनकम क्लब हो रही हो, चाहे माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब हो रही हो, चाहे डॉटर्स सन्स वाइफ की इनकम क्लब हो रही हो, जितने भी क्लबिंग के सेक्शन है उन सेक्शंस में भी 1 और 4 को उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया। नेक्स्ट, ये एक नया उन्होंने प्रोविजन डाला कि अगर कोई DTAA का रिलीफ ले रहा है, इफ एनी एसएससी इज क्लेमिंग अ रिलीफ अगेंस्ट द सैलरी इनकम अंडर द DTAA ऑफ 90 और 90A और यूनिलैटरल रिलीफ ले रहा है अंडर सेक्शन 91, दैट पर्सन इज आल्सो प्रोहिबिटेड फ्रॉम फाइलिंग ITR 1 and 4, he has to file ITR 2, क्योंकि ITR 2 में एक फॉरेन टैक्स क्रेडिट का फॉरेन टैक्स पेड का एक शेड्यूल बना हुआ है 1, 2 में भी और 3 में भी, जिसमें आपको फॉरेन टैक्स का सारी डिटेल डालनी है। बाकी एक लास्ट ईयर एक बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट उन्होंने डाली थी फॉर्म्स में कि जिसके पास भी कोई फॉरेन एसेट है, और फॉरेन एसेट को उन्होंने डिफाइन किया कि किसी भी कंपनी के कोई शेयर्स हैं जो आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, किसी भी बैंक शेयर्स नहीं है, किसी भी फॉरेन कंपनी में डायरेक्टर है, किसी भी कंपनी के किसी भी बैंक अकाउंट में सिग्नेटरी है,
इवन किसी फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी का कोई इंश्योरेंस पॉलिसी का बेनिफिशियरी है, कोई फॉरेन ट्रस्ट का बेनिफिशियरी है, कोई फॉरेन ट्रस्ट में ट्रस्टी है, तो इस तरह की जो फॉरेन टैक्स हमारा जो शेड्यूल है, फॉरेन एसेट्स का एफए शेड्यूल होता है, अगर उसमें किसी भी क्लॉज में फॉल कर रहे हो तो उसको भी 1 और 4 फाइल नहीं करनी, ही हैज टू फाइल 2 और 3। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम कर देते हैं while selection of the form। तो ये चीजों का प्लीज ध्यान रखिए, that is required to do। नेक्स्ट थिंग कम्स, जो एक नॉर्मल क्वेरी आती है खास करके कुछ ऐसे लोगों के लिए जिनके पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, जिनका अपना आधार में मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है, तो उनके लिए क्वेश्चन आता है कि क्या इनकी फिजिकल रिटर्न फाइल हो सकती है। आंसर इज किसी की भी कोई फिजिकल रिटर्न अलाउड नहीं है फाइल करना, एक्सेप्ट इन केस ऑफ सुपर सीनियर सिटीजन। तो सुपर सीनियर सिटीजन जो है उनके लिए अलाउड है, लेकिन वो भी तब जब उनकी इनकम 5 लाख से कम होगी। अगर अदरवाइज इन ऑल केसेस ई फाइलिंग ही होनी है। और अब आई थिंक इट इज अ सेटल्ड लॉ, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ई फाइल करते हैं। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई कीजिए, आप आधार बेस्ड ओटीपी से वेरीफाई कीजिए, या फिर वो बैंक के लिंक करके जो है वेरीफाई कर दीजिए। आई थिंक वन इज द न्यू थिंग व्हिच हैव स्टार्टेड कि अगर किसी एसएससी का बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर अपडेटेड है और मोबाइल के एसएमएस आते हैं तो उसका बैंक लिंक करके आप उसका जो है ओटीपी जनरेट कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस कैन बी यूज्ड बाय ऑल द पीपल वेयर द आधार बेस्ड वेरिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारे केसेस में क्या है, नाम अलग है, डेट ऑफ बर्थ अलग है आधार और पैन के अंदर, कई जगह पे आर के गुप्ता लिखा हुआ है, वैसे देखेंगे तो रमेश कुमार गुप्ता है आधार कार्ड पे और पैन कार्ड पे मिसमैच है। तो इस तरह की चीजों के लिए अगर आपको ओटीपी वेरीफाई करना है तो ये सारी चीजें करनी चाहिए। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि जिनका भी आधार नंबर लिंक नहीं है, अगर उनके आधार में गलती है तो प्लीज उन एसएससीज को बोल के उनके आधार नंबर ठीक करा लीजिए। अगर उनके पैन में गलती है तो आप उनका पैन नंबर करेक्ट करा लीजिए बाय फॉलोइंग द ड्यू प्रोसीजर विद एनएसडीएल, क्योंकि अल्टीमेटली आपको आधार और पैन लिंक करना ही पड़ेगा इन टाइम्स टू कम। और अभी हमारे को पता है कि 31 मार्च उन्होंने जो है लास्ट डेट रख दी है इसकी, 31 मार्च 2021 तब तक आपको आधार लिंक करना है, नहीं तो आपका आधार क्या हो जाएगा, वो पैन नंबर क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो इस इनएक्टिव हो जाएगा। तो उसके पर्सपेक्टिव से भी रिक्वेस्ट है कि इस बार ये काम जरूर करना। One more thing what I request to everybody here who are present is, please do not give your mobile number and email ID as primary email ID in the portal। सर उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप एसएससी का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सेल्फ में दें और अपना आईडी एज एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव दें। जो भी नोटिस आएगा, जो भी ओटीपी, जो भी इनकम टैक्स से कम्युनिकेशन आएगी, वो एआर को ऑटोमेटिकली आएगी। सो एटलीस्ट एसएससी के पास भी कम्युनिकेशन जानी चाहिए और एसएससी शुड नो कि उसकी कम्युनिकेशन क्या हो रही है, कैसे हो रही है। उसमें एक चीज जो मैंने करा दी है, पहले अब आपके पास, हमारे पास नोटिस आते थे या हमारे पास कैंपेन में आते थे, पता चला 20 एसएमएस आ गए कि आपका जो है रिटर्न फाइल नहीं हुई, आपकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, आपके एक हमने नोटिस इशू कर दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। या आजकल वो कंप्लायंस विंडो का आ रहा है, नया शुरू हुआ है प्रोजेक्ट इनसाइड 360 डिग्री प्रोफाइलिंग, जिसमें वो बता रहा है कि आपका इन सालों के हमारे पास एआईआर इंफॉर्मेशन आई है, प्लीज वेरीफाई ये करेक्ट इंफॉर्मेशन है या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है, लाइक दैट। सो इन दोज केसेस जो है आपको पता ही नहीं होता कि किसका नोटिस आया। पता चलेगा राजेश जी ने अपनी रिटर्न फाइल करते समय कोहली साहब का मोबाइल नंबर डाल दिया, और कोहली साहब ने जब अपनी रिटर्न फाइल करी तो मेरे उसमें मेरा मोबाइल नंबर डाल दिया। एसएमएस आया जो है कोहली साहब के मोबाइल पे, इनको पता ही नहीं कि राजेश जी का है, अविनाश का है या इनका खुद का है। तो अब उन्होंने, डिपार्टमेंट ने मेरे को जो है नाम, ईमेल पे तो नाम भेजने शुरू कर दिए, जो ईमेल मैसेजेस आ रहे हैं, ईमेल्स रिसीव हो रही है, उस पे तो अब एसएससी का नाम आ रहा है। कि मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि सर पता तो चले किसका है। वैसे उन्होंने मेरे को ये रिक्वेस्ट करी है सीपीसी वालों ने कि आप एसएससी का जरूर डालें ताकि वो लोग एसएससी तक पहुंच पाए। वो उनका ऑब्जेक्टिव है कि एसएससी का मोबाइल नंबर डल जाएगा तो उसकी वो ट्रैकिंग कर लेंगे कि वो कौन सा फेसबुक आईडी यूज कर रहा है, वो कहाँ घूम रहा है, तो उसके प्रोजेक्ट 365 डिग्री प्रोफाइलिंग में बड़ा काम आएगा वो मोबाइल नंबर उनको। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि इस बार जितनी रिटर्न हम फाइल करें, 2 चीजें चेक कर लें कि आधार और पैन लिंक है या नहीं, और दूसरा जब उसकी केवाईसी अपडेट करें तो उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर डालें। सेकेंडरी में अपना डालना चाहें तो डाल लें। तो ये डिपेंड करता है कि आपको, या रिवर्स कर लें, अपना प्राइमरी में डाल लें, उसका सेकेंडरी में डाल लें।
etc. So like that you can do it, and this is a request that please do it, because आगे जो ये जो फेसलेस वाला सारा सिनेरियो चल रहा है, इस फेसलेस में अदरवाइज बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। डिजिटल सिग्नेचर किसको चाहिए, किसको नहीं चाहिए, एटसेट्रा, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसका टैक्स ऑडिट होना है और कंपनी एसएससी, इन दोनों के लिए रिटर्न डिजिटली जाएगी, बाकियों के लिए ऑप्शन है, तो इसमें मैं ज्यादा जो है डिस्कस नहीं कर रहा। यूटिलिटी आप मैक्सिमम प्रोफेशनल जो है वो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो सॉफ्टवेयर यूज करें, अदरवाइज गवर्नमेंट की एक्सेल यूटिलिटी इज गुड इनफ टू फाइल एनी रिटर्न, तो ये आप उसको चेंज करके कर सकते हैं। सर एक नया शेड्यूल, एक नॉर्मल प्रॉब्लम जो शुरू में आई कि सर जो टाइम लिमिट एक्सटेंड हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि आप एटीसी जो है जुलाई तक कर सकते हैं, एटीडी का मेडिकल का प्रीमियम जुलाई तक दे सकते हैं, एक्सेट्रा, तो ये है कि ये कहाँ डालें। सर इसके ऊपर एक मेजर आपको जो है दिक्कत आने वाली है, और इसमें आप प्लीज जो भी उसका एटीसी और एटीडी या एटीसीसीडी जो भी सेक्शन में या एटीजी जो भी ले, सर उसको दो पार्ट में प्रॉपरली बाइफरकेट करके डालें। बिफोर 31 मार्च अगर उन्होंने प्रीमियम पे कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दी, मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम दे दिया या कोई डोनेशन दे दी, तो वो सेकंड नंबर कॉलम में डालें। और आफ्टर अप्रैल, अगर आफ्टर 31 मार्च 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स किया विद इन द ड्यू डेट जो है, तो उसको कॉलम नंबर 3 में डालें। हो सकता है कि कॉलम नंबर 3 के लिए वो आपसे कोई वेरिफिकेशन मांगे बाद में सब्सिक्वेंटली, या कहीं से कोई मैच करना चाहे, तो इसलिए इसमें प्रॉपर डिटेल्स जो है वो फिल करें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट जो है आईटीआर फॉर्म में दी गई, जिसको आप प्लीज ध्यान रखें। सिमिलरली 54 ईसी 54 जीबी वगैरह की जो अमेंडमेंट है, जिसमें वो एक्सटेंडेड टाइम दिया गया, उसके लिए भी उन्होंने दो अलग अलग कॉलम बना दिए। इन दोनों कॉलम में आप जो है प्रॉपरली डिटेल अप टू 31 मार्च की सेकंड में और बियॉन्ड 31 मार्च की थर्ड में प्लीज फाइल करें। इसी तरह वो जो हमारी दो अमेंडमेंट आई थी जो एप्लीकेबल थी विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट डेट 2021, वन इज एडिशनल रिलेटिंग टू एडिशनल डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउसिंग लोन टेकन फॉर अ फ्लैट, न्यू फ्लैट ओनली प्रॉपर्टी में, जो वो 1.5 लाख रुपए की एडिशनल डिडक्शन हुई थी ईईए। और एक वो इलेक्ट्रिक व्हीकल, चाहे वो स्कूटी ली हो या गाड़ी ली हो, उसके लोन पे जो एसएससी ने अगर कोई इंटरेस्ट पे किया है अप टू ₹1.5 लाख रुपए, उसके लिए उन्होंने दो कॉलम अलग बना दिए। उस दो कॉलम को भी इन्होंने यहाँ पे दे दिया है, तो आप इस दो कॉलम में उसकी जो डिडक्शन लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। दैट इज कॉन्सिक्वेंट टू चेंज इन द लॉ। ये दो कॉलम उन्होंने डाल दिए हैं, दैट यू कैन टेक इट आउट। सिमिलरली जो कॉर्पोरेटाइजेशन करने के बाद जो एटीपी के कॉरेस्पॉन्डिंग एटीपीए था, उसके लिए उन्होंने डाल दिया। और दो अमेंडमेंट 80LA1 और 1A की थी फॉर बैंक्स एंड आईएफएससी यूनिट्स। अगर कोई बैंक की और आईएफएससी की रिटर्न भर रहा है तो वो दो कॉलम उन्होंने एडिशनल डाल दिए रिटर्न फॉर्म में। तो दीज कॉलम्स कैन बी यूज्ड बाय द पर्सन। सर अब यहाँ पे आते हैं, ये एक प्रैक्टिकल दिक्कत आ रही है, जो अभी भी कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो नहीं मान रहे। सर हमारे यहाँ अमेंडमेंट आई थी सेक्शन 139(1) में, एक 7th प्रोवाइजो डाला गया था और उसमें ये कहा गया था, इफ एनी एसएससी डू नॉट हैव टैक्सेबल इनकम एंड ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। अब सर जरा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। सर मान लीजिए जगदीश जी का एक एसएससी है और उस जगदीश जी के एसएससी की इनकम है 4 लाख रुपए। जगदीश जी जरा ध्यान से समझना, सुनना मैं क्या कह रहा हूं। आपके जो क्लाइंट है, आपका जो एसएससी है, उसकी टैक्सेबल इनकम है 4 लाख रुपए। अब उसने एटीसी क्लेम करा 1.5 लाख रुपए। उसने जो है मेडिक्लेम पॉलिसी कराई और उसका प्रीमियम उसने दिया लेट्स अज्यूम 10,000 रुपए। उसने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया, उसमें उसने प्रीमियम दिया 5,000 रुपए। अब मेरे को आप ये बताइए कि क्या उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है या नहीं है एज पर सेक्शन 139(1)? जगदीश जी। सर मेरे हिसाब से तो मैंडेटरी है सर। मेरे हिसाब से मैंडेटरी है। आपके हिसाब से मैंडेटरी है? हाँ जी कोहली साहब। हाँ जी सर, मैंडेटरी है। 2.5 लाख से बियॉन्ड जब भी मेरे ग्रॉस टोटल इनकम है, सपोज टू फाइल द रिटर्न। Correct. Very so correct. The moment the gross total income without claiming chapter 6A, without claiming the benefit of chapter 6A, if it exceeds 2.5 lakh rupees, even though it is below 5 lakh threshold limit, सर थ्रेशोल्ड अगर 5 लाख के बियॉन्ड जाएगा, अगर उससे नीचे है तो आपको रिलीफ मिलता है, रिलीफ मिलेगा
जो है उसको, बट ही इज लायबल टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। सो उन एसएससीज की जिनकी टैक्सेबल इनकम, मैं ग्रॉस नहीं बोला, मैं नेट टैक्सेबल इनकम, इवन इफ इट इज 2.5 और बिलो, बट दे आर लायबल टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम अंडर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट, उनके ऊपर ये 7th प्रोवाइजो अप्लाई नहीं करता। So this will be applicable only on an SSC whose gross total income without chapter 6A is less than 2.5 lakh rupees. So अगर मान लीजिए कोई SSC है, उस SSC की टैक्सेबल इनकम विदाउट चैप्टर 6A अगर 2.5 लाख से कम है और उसकी ये 3 कंडीशनें में से कोई भी सेटिस्फाई हो जाती है, वो क्या कि उसके पास कोई अकाउंट है और वो अकाउंट जो है वो करंट अकाउंट है और उस करंट अकाउंट में उसने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा उसको क्या हुई है, रिसिप्ट हुई है, उसने कोई फॉरेन ट्रेवल पे 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा किया है, या उसका बिजली का मीटर का जो बिल आया वो 1 लाख रुपए से ज्यादा है। So only in those cases he is liable to file return of income under 7th proviso to section 139(1). So यहाँ पे बहुत सारे हमारे प्रोफेशनल ब्रदर परेशान हो रहे थे और बहुत लोगों ने मेरे को फोन भी करके बोला कि सर हमें ये डिटेल कंपाइल कैसे करें, सर ये जो है मीटर का नाम चेंज नहीं हुआ तो क्या करें, सर ये ऐसे क्या उसको कंप्यूट करें, क्या वो जॉइंट नेम पे अगर प्रॉपर्टी है तो क्या उसको आधा आधा ले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सर ये आपको सिर्फ उन केसेस में देखना है जिनमें 2.5 लाख से कम है। नॉर्मली अगर आप देखें तो जिसकी इनकम 2.5 लाख से कम होगी वो फॉरेन ट्रेवल मुश्किल है कि करता हो, या उसका मीटर का बिल 1 लाख रुपए हो, ऐसा बहुत रेयर चांस है, क्योंकि अगर उसने किराए पे भी दे रखा होगा, मान लीजिए उसने अपना ये ऑफिस या घर किराए पे भी दे रखा होगा, तो मुझे लगता है कि उसका इतना रेंटल वैल्यू तो होगा ही कि एटलीस्ट 1 लाख रुपए के तो 3 गुना रेंट आ ही रहा हो। तो बहुत रेयर चांस है, बट ऐसे एसएससी हैं। करंट अकाउंट में तो हैं एसएससी, वो कौन है, वो सारे एंट्री ऑपरेटर वाले जितने हैं वो सारे क्या करते हैं, इधर उधर नाम से जो है अकाउंट खुलवा के कैश जमा हो रहा है, कैश निकल रहा है, ट्रांजैक्शन आ रही है जा रही है, रिटर्न फाइल ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो कहते हैं जी हमारी तो नेट टैक्सेबल इनकम 0 है, देयर इज नो इनकम एज सच, बिकॉज देयर इज अ लोन एंट्री कमिंग, लोन एंट्री गोइंग, बिकॉज ऑफ द लोन एंट्री कमिंग एंड गोइंग, हेंस देयर इज नो टैक्सेबल इनकम, एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी taxable income we are not filing the return of income। ये कब होता था? जब सर्च में वो पकड़े जाते थे, सर्वे में वो पकड़े जाते थे, जब उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके पूछा जाता था ये रिटर्न क्यों नहीं फाइल करी, सर रिटर्न फाइल करनी जरूरी नहीं है, मेरी इनकम ही नहीं है 2.5 लाख से ज्यादा। तो उन लोगों के लिए अब ये 3 क्लॉज उन्होंने डाल दी, और ये तभी हमें अप्लाई करनी है जब उनकी जीटीआई विदाउट चैप्टर 6 से अगर 2.5 लाख से कम है। अगर आपके एसएससी की जीटीआई 2.5 लाख से ऊपर है तो उस एसएससी को नॉर्मल प्रोविजन में रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, चाहे उसकी टैक्सेबल इनकम है या नहीं है। तो आपको यहाँ पे उसको नो करना है, और जैसे ही आप यहाँ पे नो कर देंगे वहां पे आपको ये ऑप्शन नहीं पूछेगा। अभी भी मेरे को जो है कल किसी का फोन आया, परसों सॉरी सैटरडे को आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम अहमदनगर, दे आर सेइंग कि हमारा सॉफ्टवेयर आगे ही नहीं बढ़ रहा। तो वो कह रहा है कि नहीं आपको, क्योंकि आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है, उनकी 5 लाख से कम इनकम थी, तो आपको ये रिटर्न फाइल, ये डिटेल फाइल करना मैंडेटरी है कि कितना बिल है एक्सेट्रा। तो मैंने उनको कहा कि आप अपना सॉफ्टवेयर चेंज कराएं, नहीं तो गवर्नमेंट की यूटिलिटी से यूज करें। तो ये एक नया इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है इस बार आईटीआर में, जो एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी कई प्रोफेशनल्स को और कई एसएससीज को आ रही है। तो पहले आप लॉ को समझते हुए सर यहाँ पे अगर आपका 2.5 लाख से ज्यादा है तो यहाँ पे नो करना है और आप आगे बढ़ जाए, और अगर 2.5 लाख से कम जीटीआई है देन ओनली पुट यस एंड देन सी कि आप किसी में फॉल करते हैं या नहीं करते। तो ये आप इसको अकॉर्डिंगली भर सकते हैं। दैट आई विल आई कैन टेल यू अबाउट दिस। नेक्स्ट बजट में जैसे एक अमेंडमेंट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि पैन और आधार जो है वो इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट पैन एंड आधार इंटरचेंजेबल यूज under the house property HP schedule, they have put PAN/Aadhaar number of the co-owner to be mentioned there, और ये अभी मैंडेटरी फील्ड नहीं है। तो अगर आप भरना चाहते हैं भरे, नहीं भरना चाहते ना भरे, दिस इज नॉट अ मैंडेटरी फील्ड, बट दिस interchangeability they have started using it in the ITR forms। तो ये आपके लिए, आप भरना चाहे भरे, नहीं भरना चाहे ना भरे, तो ये ऑप्शनल है। बट बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है इसको मैंडेटरी कर रहे हैं, तो वो आप उसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट सर, ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इंपॉर्टेंट चेंज है।
जो अभी तक चल रहा था। इसमें क्या था सर, अगर मान लीजिए आपका कोई कॉन्डोनेशन का, आपको कोई कॉन्डोनेशन मिली सीआईटी से, या आपको कोई 148, आपके एसएससी को कोई 148 का नोटिस आया, या आपको कोई आपके एसएससी को कोई 142(1) का नोटिस आया, या फिर इन केस ऑफ सर्च एंड सीजर, जो सर्च एंड सीजर वाले केसेस होते हैं, उन सब केसेस में एक रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है और रिटर्न आपसे मांगी जाती है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है कि या तो मैं 139(1) में रिटर्न भरूं, या 139(4) में करूं, या 139(5) में करूं। बट इसके इस तरह के जो होते हैं नोटिस जो होते हैं, चाहे वो 148 का हो, चाहे 153A हो, 153C हो, 142(1) हो, या 139(9), वो डिफेक्टिव रिटर्न की बात कर रहा हूं मैं सर। इन सब केसेस में अब यूडिन डालना, यूडिन कौन सा वाला, डिन नंबर सर, नॉट यूडिन, डिन नंबर ऑन द नोटिस और द ऑर्डर इशूड बाय द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी जो है वो डालना अब मैंडेटरी है। नाउ this DIN number as well as the date of such order, तो 119 का ऑर्डर होगा, बाकी सारे नोटिस होंगे। तो 139(9) जो है नोटिस होगा, 142(1) नोटिस होगा, 148 नोटिस होगा, 153A नोटिस होगा, 153C नोटिस होगा, सिर्फ 119 वाला ऑर्डर होगा। तो उसके केस में आपको ऑर्डर का डिन नंबर प्लस आपका डेट डालना मैंडेटरी है। अब वो वाला काम नहीं चलेगा कि कोई से भी साल के रिटर्न भर दो, बिना नोटिस के भी जो है भर देते थे, तो वो सारी चीजें अब नहीं चलेंगी। तो दिस इज व्हाट वन हैज टू डू इट। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है जो इस साल से आया। बहुत बारी क्या होता है, हमने देखा था कि हमें जितने भी बैंक अकाउंट है अब सबकी डिटेल देनी मैंडेटरी होगी पिछले 3 साल से। सो एवरी एसएससी, wherever he is maintaining bank account, whether under joint name or individual name, those who are operative bank accounts, he has to give the details of all the bank accounts. Earlier he has to select on one bank account for the refund purposes. अब उसको उन्होंने, और वहां पे अगर रिफंड रिजेक्ट हो जाता था ड्यू टू एनी रीजन, चाहे मिसमैच ऑफ पैन हो, चाहे मिसमैच ऑफ नेम हो, चाहे मिसमैच ऑफ बैंक नंबर एटसेट्रा हो, तो आपको देयर इज अ लॉन्ग प्रोसेस टू गो फॉर अ री इशू ऑफ द रिफंड। उसको ओवरकम करने के लिए व्हाट दे हैव सेड, they said you can choose multiple bank accounts to get your refund credited in one of the bank account. अगर एक अकाउंट में नहीं हुआ क्रेडिट बाय चांस, तो वो नेक्स्ट डे पे दूसरे बैंक अकाउंट में ट्राई मारेगा, फिर तीसरे में मारेगा। तो जितने आप देना चाहते हैं उतने बैंक अकाउंट देके उसमें आप सिलेक्ट कर लें कि किस किस बैंक अकाउंट में आपको जो है अपना रिफंड चाहिए। हो सकता है राजेश जी का एक बैंक अकाउंट उनकी वाइफ के साथ हो, एक उनका खुद का पर्सनल हो, एक उनका बैंक अकाउंट उनके बेटे के साथ हो। वो चाहते हैं कि भाई मेरी वाइफ वाले में आ जाए या मेरे में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट बेटे वाले में नहीं आना चाहिए। तो ही कैन चूज 2 अकाउंट्स की ये 2 अकाउंट में हम रिफंड दे सकते हैं। सर इसमें मैं एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी तो नहीं कहूंगा, बट एक इग्नोरेंस जो है वो हो रही है। सर हमने 3 साल पहले जितने एसएससी थे उनके बैंक अकाउंट भरे थे, क्योंकि उस वक्त वो मैंडेटरी था। तो किसी के 4 थे तो 4 भर दिए, किसी के 2 थे तो 2 भर दिए, किसी के 3 थे तो 3 भर दिए। उसमें हम उसके बाद हमने उससे किसी से ये नहीं पूछा कि तुमने क्या कोई ड्यूरिंग द ईयर नया बैंक अकाउंट खुलवाया है। तो एक कुछ केसेस मेरे पास आए जो मेरे को उनको नोटिस आए, उन्होंने कहा कि भी आपने अपने रिटर्न में ये 3 बैंक अकाउंट डिस्क्लोज किए हैं, बट एसएससी आल्सो हैव दीज 2 मोर बैंक अकाउंट्स। वो बैंक अकाउंट क्या हुए हम डिस्क्लोज करना भूल गए। क्यों? क्योंकि जो हम अपने सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर एक बार ही मास्टर क्रिएट हो गया, काम खत्म। रिक्वेस्ट इज कि एटलीस्ट नंबर ऑफ बैंक अकाउंट जो उसके, अगर कोई ड्यूरिंग द ईयर उसने ओपन किया है या उसका कोई और अकाउंट है जो हम डालना भूल गए हैं, एक तो वो जरूर सिलेक्ट कर ले, वो जरूर उसमें डिस्क्लोज कर दें। दूसरा, आप मोर देन 1 बैंक अकाउंट शुड बी सिलेक्टेड एटलीस्ट इन केस ऑफ रिफंड केसेस। अगर आपका किसी एसएससी का रिफंड आ रहा है तो मोर देन 1 करे, आपका जो रिफंड प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो जाएगी। अगर बाय चांस एक अकाउंट में नहीं आ पाया रिफंड तो दूसरे अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अदरवाइज आपको 2-3 महीने का जो वेट करना पड़ता है वो वी हैव टू वेट फॉर दिस। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट चेंज एंड वेयर वी शुड टेक बेनिफिट ऑफ द सेम। एंड इसमें जो हम नहीं डालते बैंक अकाउंट उसका आप प्लीज उसको जो है ध्यान में रख के करेंगे। पास थ्रू का मैं ले नहीं रहा क्योंकि मे बी आपके यहाँ को ज्यादा दिक्कत होगी नहीं पास थ्रू की, इट्स नॉट मैंडेटरी। एफए शेड्यूल में जिप कोड डाल दिया, वो तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। 115 बीबीडी जो है फॉरेन कंपनीज का, ये एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आती थी सर।
इसमें क्या हमारा प्रोविजन है 115 बीबीडी। आई डोंट नो आप में से कितनों ने ये रिटर्न भरी है, बट मेरी एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी थी। मेरे एक कंपनी में फॉरेन कंपनी से, फॉरेन सब्सिडरी से डिविडेंड आया, एंड एज पर लॉ उस फॉरेन सब्सिडरी पे जो डिविडेंड है उसका रेट ऑफ टैक्स है 30% की बजाय या 25% की बजाय, नाउ द रेट ऑफ टैक्स इज 15% अंडर सेक्शन 115 बीबीडी। तो उस पर्टिकुलर 115 बीबीडी के लिए कोई हमारे यहाँ प्रोविजन नहीं था जिसमें मैं उसको डिस्क्लोज कर सकूं। तो हम उसको अभी तक क्या कर रहे थे, हम उसको 50% करके दिखा देते थे या उसका प्रोपोर्शन कम करके दिखा देते थे। अब उन्होंने क्या किया, अपने आईटीआर फॉर्म में ये एक डिफिकल्टी जो आती थी उसको रिमूव किया और 115 बीबीडी का एक अलग से कॉलम भी डाल दिया, प्लस उसके आगे रेट भी 15% का उन्होंने अलग से दे दिया। ये उन्होंने एक इंपॉर्टेंट अच्छा अमेंडमेंट जो है किया है, जिसको आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट सर, ये डिफिकल्टी जो है एक प्रोफेशनल ब्रदर को आई। सर उनकी क्या थी, सेक्शन 8 कंपनी थी, जो सेक्शन 25 कंपनीज होती हैं वो थी उनकी। वो रिटर्न भर रहे थे और उन्होंने जो है 11-12 में और 12AA में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ था। तो ही सेड आई हैव अ सेक्शन 8 कंपनी बट आई हैव नॉट गेट माय कंपनी रजिस्टर्ड अंडर 12AA ऑफ द एक्ट एंड आई एम आल्सो नॉट क्लेमिंग 1023C। मैं उस पर टैक्स देना चाहता हूँ, या जो भी उस साल में उनको मिला नहीं था या भूल गए थे, ऐसा कुछ इशू था। अब उसके अंदर वो पूछता है कि जी आप नंबर ऑफ शेयर होल्डर बताओ। अब शेयर होल्डर तो है ही नहीं उसमें, सेक्शन 8 कंपनी जो होती है उसके शेयर होल्डर कोई होते ही नहीं है। इट इज मेयरली अ सब्सक्रिप्शन एंड अंडर मेंबर, कोई शेयर्स इशू नहीं होते उन लोगों को। तो उसके लिए उनको क्या, उनके लिए जो हमारा जो एसेट शेड्यूल था, उस शेड्यूल में जो है बिना शेयर होल्डर डाले वो आगे नहीं लेके जाता था 6 में। तो उसके लिए उन्होंने एक रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रैक्टिकल डिफिकल्टी रिमूव करी, या कंपनी बाय गारंटी वाले जो थे जहाँ पे शेयर्स इशू नहीं होते, उन सब केसेस में यहाँ पे उन्होंने एक अलग से डाल दिया कि आप जो है अगर आपकी कंपनी के शेयर्स नहीं इशू हुए तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके आगे ले जा सकते हैं। तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट चेंज विच वी हैव डन इट। ये सर एक ये 1976 से पहले के जो रॉयल्टी एग्रीमेंट एंटर्ड है बाय द गवर्नमेंट, उसमें क्या होता है कि रॉयल्टी का जो टैक्सेशन होता है वो 50% पे होता है, तो 50% की डिडक्शन उन्हें मिली हुई है। मैंने आज तक देखा नहीं कि कोई ऐसा है, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी के को दिक्कत आई होगी, तो इसलिए उन्होंने एक अमेंडमेंट करके डाल दी कि अगर रॉयल्टी का एग्रीमेंट है और वो एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ है, 1/4/1976 से पहले का एग्रीमेंट है और उसको कोई रॉयल्टी मिल रही है, तो वो 50% ही टैक्स होती है और 50% के ऊपर भी 10% टैक्स होता है उस पर। तो इफेक्टिवली 5% का टैक्स रेट होता है उस पर। तो उस केस में कोई हमारा कॉलम नहीं था, तो अब उन्होंने वो आईटीआर 6 में एक ये कॉलम डाल दिया फॉर द पर्पस ऑफ रेक्टिफिकेशन रॉयल्टी रिसीव्ड in pursuance to an agreement entered with the government of India on or before 1st of April 1976। उसके लिए जो है आपको ये अमेंडमेंट डाला है, बट अगर किसी को हो या ना हो मुझे पता नहीं। नेक्स्ट सर ये हमारे यहाँ एक दो नए प्रोविजन आए थे जहां पे टैक्सेशन जो है वो कम कर दिया गया था कंपनी एसएससी के लिए 22% और 15%, 115 BAA एंड 115 BAB। सर इसमें प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म आपको फाइल करना है बिफोर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, और उस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म को फाइल करने के बाद आपको ये जर्नल इंफॉर्मेशन में सिलेक्ट करना है कि क्या 115 BAA या BAB का कोई भी बेनिफिट ले रहे हो, मतलब आप 22% वाली कैटेगरी में हो या आपने 1 अक्टूबर 2019 के बाद कंपनी इनकॉर्पोरेट करी और एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करी और वो आपका जो टैक्स रेट है वो हम 15% आपका जो हो गया। अगर आप उसमें कोई हो तो उसको आपको यहाँ पे यू हैव टू सिलेक्ट एनी ऑफ द ऑप्शन गिवन हियर एंड बेस्ड ऑन दैट आपका जो टैक्स रेट है वो हो जाएगा। सर बहुत सारे सॉफ्टवेयर में जो मेरे को अभी कुछ मेंबर्स ने बताया उनको वो कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि सर हमारा सॉफ्टवेयर अभी भी 25% प्लस सरचार्ज वगैरह वाला फिगर ले रहा है, 22 नहीं ले रहा। वो इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि हमने जर्नल में जाके, जर्नल इंफॉर्मेशन में जाके ये पर्टिकुलर सेक्शन सिलेक्ट नहीं किया है, और क्योंकि हम जर्नल तो छेड़ते ही नहीं है, उसका मास्टर तो छेड़ते ही नहीं है, तो ये आपको मास्टर में जाके यू हैव टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर सेक्शन और ऑप्शन इन दिस। आफ्टर सिलेक्टिंग दिस ऑप्शन जब आप कंप्यूटेशन करोगे तो आपकी कंप्यूटेशन 22% प्लस सरचार्ज प्लस एसएस या 15% प्लस सरचार्ज प्लस एस जो भी आएगी उसके ऊपर आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो जिन एसएससीज की टैक्स लायबिलिटी 25% पे ही कंप्यूट हो रही है या 30% पे कंप्यूट हो रही है, उनको रिक्वेस्ट है कि वो जर्नल में जाके
जनरल उसमें मास्टर में जाके पहले वो अपने एसएससी का जो है वो ठीक कर ले। बेस्ड ऑन दैट हम जो है उसको आगे वो ऑटोमेटिकली कंप्यूट करना शुरू कर देगा। एक और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है, पहले हम डायरेक्टर का सिर्फ नाम देते थे, उसका फादर्स नेम देते थे, उसका डेजिग्नेशन देते थे कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर है या डायरेक्टर है। लास्ट ईयर उसके अंदर उसका जो है अपना डिन नंबर देना मैंडेटरी हो गया था। इस बार उन्होंने रेजिडेंशियल एड्रेस भी देना मैंडेटरी कर दिया है, दैट द पर्सन हैज टू गिव हिज रेजिडेंशियल एड्रेस। तो जो उसका करंट रेजिडेंशियल एड्रेस है प्लीज उसका पहले से लेके रख लो और वो अब उसको रेजिडेंशियल एड्रेस देना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे से एक मेंबर ने पूछा क्या हम कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस डाल दें यहाँ पे? आंसर इज नो। क्या हम कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस का एड्रेस डाल दें? आंसर इज नो। वो डायरेक्टर जहां पे भी रह रहा है, जिस भी रेजिडेंशियल एड्रेस पे रह रहा है, ही हैज टू प्रोवाइड दैट एड्रेस अंडर दिस ITR 6। अदरवाइज ये आप गलत इंफॉर्मेशन फर्निश करेंगे। ये क्यों लिया गया है? ये इसलिए लिया गया है कि अगर कंपनी रिस्पॉन्ड नहीं करती तो डायरेक्टर के घर पे पहुंच जाएंगे, उनको चिट्ठी जो है उनके घर पे भेज देंगे चिट्ठी। तो इसलिए ये रेजिडेंशियल एड्रेस उन्होंने इस बार स्पेसिफिकली नाम मांगा है ताकि पता तो चले रहता कहाँ है डायरेक्टर। को ओनर वाला मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, वो उसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। हाँ, एक ये डिफिकल्टी और आई थी जो अब उन्होंने अमेंडमेंट कर दी। सर लास्ट ईयर आपको टू बूस्ट द सेल ऑफ 4-व्हीलर्स, टू बूस्ट द सेल ऑफ मोटर व्हीकल्स, दे हैव रेज्ड द डेप्रिसिएशन रेट फ्रॉम 30% टू 45%। तो जो हमारा कार्स का डेप्रिसिएशन रेट था दैट हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 45 एंड कॉन्सिक्वेंटली अगर लेस देन 180 डेज था तो आधा हो रहा था। तो उस केस के अंदर उन्होंने जो है हमारे को एक नोटिफिकेशन थी लास्ट ईयर की जिसमें मैक्सिमम डेप्रिसिएशन रेट जो है वो 40% था। इवन कंप्यूटर्स पे जो डेप्रिसिएशन रेट 60% था वो भी रिड्यूस होकर 40 हो गया था। एनर्जी सेविंग डिवाइसेस पे 80% था, वो भी 40% हो गया था रिड्यूस होके। तो सारे डेप्रिसिएशन रेट 40 पे कैपिंग हो गए थे। बट अब इसका क्या करें? जो एक कार के लिए स्पेसिफिक नोटिफिकेशन आया था कि आप ये कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है उन्होंने एक अलग से कॉलम उन्होंने जो है डेप्रिसिएशन शेड्यूल में डाल दिया और इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो है अभी उन्होंने टैक्स ऑडिट की एग्जिस्टिंग यूटिलिटी में नहीं डाला है। उन्होंने नोटिफाई कर दिया है 30 सितंबर को कि नया टैक्स ऑडिट में ये आएगा, बट अभी तक यूटिलिटी में नहीं है, बट यूटिलिटी में भी अभी आ जाएगा। तो अगर कोई मोटर व्हीकल किसी एसएससी ने लिया है जो कंपनी एसएससी है या अदरवाइज है, तो वो यहाँ पे 45% का एडिशनल उन्होंने ब्लॉक ऑफ एसेट बना दिया है जिसका वो बेनिफिट ले सकते हैं। सर अगर किसी एसएससी की कोई फॉरेन इनकम है या किसी नॉन रेजिडेंट की इंडिया से इनकम है एंड ही वांट टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ द ट्रीटी, उस ट्रीटी बेनिफिट लेने के लिए उन्होंने एक नया शेड्यूल डाला है अंडर ITR 3, 5 और 6, क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड होता है। तो बिजनेस इनकम या तो इंडिविजुअल की होगी, HUF की होगी, या पार्टनरशिप फर्म की होगी, या कंपनी की होगी। और सर इसके अंदर उन्होंने डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन में आपसे मांगा है कि आप हमें बताएं कितनी इनकम है जो DTA में कवर्ड है, किस आइटम में कवर्ड है, कौन सी कंट्री से आई, कौन सी कंट्री का DTA का आर्टिकल लगेगा, ट्रीटी में क्या रेट है और नॉर्मल में क्या रेट है, TRC मिला या नहीं मिला, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एक उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल फॉर द DTA बेनिफिट्स बना दिया। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को 1990A का बेनिफिट लेना है या किसी नॉन रेजिडेंट की रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं, NRI की रिटर्न फाइल कर रहे हैं जिसको आपको ट्रीटी का बेनिफिट देना है, तो इन बोथ दी सिनेरियोज प्लीज फिल दिस पर्टिकुलर शेड्यूल, अदरवाइज सिस्टम आपको उसका क्रेडिट या बेनिफिट नहीं देगा। फिर आपको बाद में जो है वो डिमांड के नोटिस 143(1) प्रोसेस होते समय आपको जो है वो दिक्कत आ जाएगी। इसी तरह सर एक प्रॉब्लम आती है फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेते समय। बहुत सारे हमारे एसएससी जो है रिटर्न फाइल करते हैं और उसमें लिख देते हैं कि मेरा फॉरेन कंट्री में टैक्स कटा, और जो फॉरेन कंट्री में टैक्स कटा उसको टैक्स पेड के शेड्यूल में भी प्रॉपर्ली डाल देते हैं, बट दे फॉरगॉट टू फाइल फॉर्म 67 अलोंग विद द रिटर्न ऑफ इनकम। तो प्लीज आप अगर कोई फॉरेन टैक्स का क्रेडिट ले रहे हैं तो पहले फॉर्म 67 फाइल करना है और बाद में रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी है। एक और प्रैक्टिकल डिफिकल्टी मैं बता देता हूं, हमारे साथ बहुत सारे केसेस में हुआ सर, वाइल अपलोडिंग फॉर्म्स एंड ITR, बहुत सारे बार क्या होता है कि ITR अपलोड पहले कर देते हैं एंड विदिन आफ्टर फाइलिंग ऑफ द ITR वी फाइल अदर फॉर्म्स विदिन सेकंड्स और विदिन मिनट्स। मैंने ITR अपलोड करी, उसके बाद टैक्स ऑडिट अपलोड कर दिया या अप्रूव कर दिया, उसके बाद मैंने 67 अपलोड कर दिया, उसके बाद मैंने मैट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया।
सर टेक्निकली उनका सिस्टम इसको मानता है कि आपने ये सारे फॉर्म्स आईटीआर के बाद फाइल करे और फिर देन यू हैव टू फाइल रेक्टिफिकेशन एंड अदर थिंग्स. तो माय रिक्वेस्ट इज वन टू अवॉइड ऑल सच सर्कमस्टेंसेस. फर्स्ट फाइल ऑल योर फॉर्म्स, चाहे वो 10B की रिपोर्ट हो, 10BB की रिपोर्ट हो, चाहे वो आपका मैट का सर्टिफिकेट हो, चाहे वो आपका फॉरेन टैक्स का सर्टिफिकेट हो, चाहे वो टैक्स ऑडिट हो, पहले सारे फॉर्म जितने फाइल होने हैं वो फाइल कर ले, उसके बाद आईटीआर अपलोड करें. ऐसा ना करें कि पहले आईटीआर कर दिया और बाद में फॉर्म फाइल हो रहे, इवन ऑन द सेम डे, वर्चुअली ऑन द सेम टाइम. तो 5 मिनट में सब कुछ अपलोड होता है, लेकिन वो बाद में होते हैं. तो आपको आईटी सीपीसी जो है उसको वो मानता है कि वो बाद में फाइल हुए, अलॉन्ग विद रिटर्न फाइल नहीं हुए. तो मेरे को ऐसा लगता है अलॉन्ग विद रिटर्न को अब उनको लिख देना चाहिए बिफोर फाइलिंग द रिटर्न. तो बिफोर कर देंगे तो पहले ही फाइल करने हैं. तो टू अवॉइड ऑल सच डिमांड्स इन केसेस आप उसको प्लीज पहले फाइल करें ताकि आगे उसमें दिक्कत ना आए. ट्रांसफर प्राइसिंग का अगर कोई मैटर है जहां पे सेकेंडरी एडजस्टमेंट होनी है तो उसके लिए उन्होंने अलग से दे दिया है डिटेल बना के, आप इसको प्रॉपर्ली फाइल करें अगर किसी केस में ये अगर ये लगनी है तो. सर एक और ये इंपॉर्टेंट चेंज है जो टैक्स ऑडिट से रिलेटेड है. उस टैक्स ऑडिट के अंदर अगर आपको पता है जो फाइनेंस एक्ट 2020 में आया, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट डेट 2021, जो भी हम कर रहे हैं कि अगर कोई एसएससी है जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और 95% पेमेंट्स एंड रिसिट्स जो हैं अदर देन कैश है, तो उस केस में उसको टैक्स ऑडिट ना कराने के लिए उसकी लिमिट जो है 1 करोड़ से बढ़ के 5 करोड़ हो गई. अगर ऐसा कोई एसएससी है तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया है. किस में देंगे सर? जहां बिजनेस इनकम है आईटीआर 3 में दे देंगे, 5 में दे देंगे और हमारे आईटीआर 6 में दे देंगे. तो उस केसेस में ये आपको भरना है कि आपकी एग्रीगेट इनकम कितनी है और आपके एग्रीगेट टर्नओवर कितनी है, आपका 95% से ज्यादा रिसिप्ट्स और पेमेंट अदर देन कैश है यानी, एंड बेस्ड ऑन दैट आपको जो है फिर उसका टैक्स ऑडिट का डिफॉल्ट आपका सिस्टम नहीं देगा. तो ये वाला एक और डिफिकल्टी थी जो आ रही थी जिसको उन्होंने करेक्ट करा है. बाकी सर एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन को उन्होंने जो है एक एक्सपेंड किया है. पहले सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होती थी, पीएसयू होती थी और अदर्स पेंशनर होता था, नॉट एप्लीकेबल होता था. अब उन्होंने एक अदर्स का कॉलम और डाल दिया है कि अगर कोई और सैलरी इनकम है तो वो आप अदर्स में दे सकते हैं. तो 7 के अंदर एज सच कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया है, बट उन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो चेंज किया है आईटीआर 7 में. बट क्योंकि अब हमारी नई जो एक्ट आया है अभी, जो हमारा ऑर्डिनेंस था जिसको कन्वर्जन इनटू एक्ट है, उसमें वो न्यू रजिस्ट्रेशन जो है वो अगले साल के लिए डेफर कर दिया है. अब किसी भी एग्जिस्टिंग 80G और 12A वाले रजिस्ट्रेशन को या 1023 वालों को दोबारा री रजिस्ट्रेशन अभी नहीं लेना. They have to take it from 1st of April 2021 itself. तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये चेंज आया था. इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि that have been postponed. इसके अलावा जो है वो डोनेशन अदर देन कॉर्पस के लिए हमें पता है एक अमेंडमेंट आई थी कि कॉर्पस टू कॉर्पस दे सकते हैं, करंट ईयर से कॉर्पस को डोनेशन नहीं दे सकते. तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे डोनेशन में अदर देन कॉर्पस लिख दिया और डिसअलाउंस में उन्होंने जो है कॉर्पस डोनेशन अलग से लिख दिया. तो किसी ट्रस्ट ने अगर करंट ईयर में कोई कॉर्पस के लिए डोनेशन दिया है तो उसको हमें यहाँ पे डिसअलाउड एक्सपेंडिचर में डालना पड़ेगा. तो दिस इज द चेंज व्हाट इज गिवन इन दी आईटीआर 7 में जो उन्होंने एक अमेंडमेंट करी जिसको हमें ध्यान में रख के वो देखना है. तो इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा चेंजेस जो है आई डोंट थिंक कि हमें आए हैं. नाउ आई बिलीव कि वी कैन मूव टुवर्ड्स दी question answer session of various difficulties faced by them if we are able to. So let us solve these question answers. जी राजेश जी. सर ये क्वेश्चन आंसर बॉक्स में आज में आप ले लो सर या मैं पढ़ूं? आप पढ़ लो, बेटर है. मैं पढ़ लेता हूँ सर जी. विद्या जी का क्वेश्चन है. आई थिंक इनको मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए भी कहा था. इनमें ये कह रही है एन इंडिविजुअल हैविंग इंश्योरेंस. आई थिंक ये तो आपने ले लिया था पहले. जी 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 ले ली. तो ऑप्शन इनको एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा बाद में. वो है सर फॉर अजय सानी जी पूछ रहे हैं फॉर एनआरआई विच फॉर्म प्लीज. सर अगर एनआरआई की अदर देन बिजनेस इनकम है तो आईटीआर 2 और एनआरआई की अगर बिजनेस इनकम है तो आईटीआर 3. ये दो फॉर्म उसके लिए एनआरआई के लिए एप्लीकेबल है जिसमें आप जो है बेस्ड ऑन द इनकम आप उसको भर सकते हैं. नेक्स्ट एक एनोनिमस अटेंडी का क्वेश्चन है that if a partner in a CA firm getting salary
can file ITR in Form 4 or Form 3. सर देखिए, अगर आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट, कैपिटल बैलेंस, अगर आप किसी पार्टनरशिप में पार्टनर हैं और आपको उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, आपको रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट मिल रहा है, या कुछ भी एक चीज मिल रही है, तो यू आर ओनली लायबल टू फाइल ITR 3. सर पार्टनरशिप रेम्यूनरेशन को आप 44 AD की इनकम नहीं बना सकते. ऑन पार्टनर रेम्यूनरेशन दिस cannot be deemed to be a 44 AD income or ADA income. On that income, there is no presumptive rate which is prescribed. So hence you have to file only ITR 3, not ITR 4. Next, Matin Gupta ji ka question hai, sir, if assessee withdraws PF within 5 years, can he take the relief of 89(1)? Yes sir, he can take the relief of 89(1), but उसके लिए आप उसका एक prescribed form है. अगर आप 89(1) के relief लेना चाहते हैं, तो there is a prescribed form that needs to be filed by the assessee before the due date of filing of return, क्योंकि जो PF से withdrawal होता है वो सैलरी में टैक्स होगा और आप उसको 89 का रिलीफ अलाउड है. बट आप प्लीज रिटर्न फाइल करते समय वो उससे पहले वो फॉर्म जरूर फाइल कर दीजिए. शिव कुमार हांडा जी का क्वेश्चन है, इफ इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ अ फ्रेंड इज पेड बाय सेल्फ क्रेडिट कार्ड, व्हाट विल बी द कंसेक्वेंस? तो सर ये जो आपके फ्रेंड है, इनको प्लीज मेरे से जरूर मिलवा दीजिए. मैं अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल इनको भेज दूंगा ताकि ये मेरा पे कर दे. राजेश जी को बोला था पे करने को, इन्होंने मना कर दिया. वैसे सर वहां पे जो लैंग्वेज यूज है, लैंग्वेज का वर्ड यूज है incurred. Incurred means the person who have actually borne the expenses. तो जिसने उस एक्सपेंस को incur किया है, जिसने उसकी लायबिलिटी बियर की है. अगर आपके फ्रेंड ने, जिन्होंने पे किया, उनको पैसे मिले उसके रिटर्न में, तो उन्होंने इनकर नहीं किया, फिर तो आपने इनकर किया. बट अगर उसको आपने पैसे नहीं दिए और उसने अपनी जेब से वैसे ही पे कर दिया आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, तो उस केस में यू हैव इनकर्ड इट. एंड इफ योर इनकम इज लेस देन 2.5 लाख GTI, देन इन दैट केस यू हैव टू टेक इट एंड यू हैव टू फाइल इट. तो जिसने पे किया अपने क्रेडिट कार्ड से वो देगा. Whether tax audit is required on F&O for salaried person having taxable income? Sir, salaried हो या ना हो, F&O is a business, is a proper normal business. और अगर उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो उसका टैक्स ऑडिट करना मैंडेटरी है. उसके ऊपर आप 44 AD का बेनिफिट भी ले सकते हो. सर मैं कह रहा हूँ वो 5 करोड़ के प्रोवाइजो का बेनिफिट लो ना सर, क्योंकि F&O जो है वो कैश में तो होता ही नहीं है. इट इज ऑल बाय वे ऑफ अ चेक अदर देन कैश. तो अगर आपकी टर्नओवर उस एसएससी की 5 करोड़ से कम है F&O बिजनेस की, तो आप उसका सिंपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओ. 2 ही तो लाइनें डालनी है, कितने की ट्रेडिंग, कितने की टर्नओवर है, कितना लॉस हुआ, नेट में प्रॉफिट है या गेन है, 2 ही चीजें डालनी होती है और बन गई बुक्स ऑफ अकाउंट. तो उस केस में, F&O के केस में, अगर उसकी 1 करोड़ से ऊपर है तो टर्नओवर में आपको टैक्स जो है क्या नाम है, टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा. बट अगर वो 5 करोड़ का बेनिफिट आप लेते हो तो 5 करोड़ के ऊपर आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा. अदरवाइज आप उसको नॉर्मल बुक फाइल करके कर सकते हो. 44 AD भी ले सकते हो. नेक्स्ट, अशोक कुमार अरोड़ा जी का क्वेश्चन है, आई थिंक कोई मिस तो नहीं हो गया. चलो, अशोक जी का एक क्वेश्चन है. अशोक जी का क्वेश्चन है, इफ वी हैव वैलिडेटेड 2 बैंक अकाउंट्स, देन इन विच बैंक अकाउंट we will receive refund? सर जो पहले लिखोगे उस पे आएगा पहले, उसके बाद सेकंड पे आएगा. वैसे अभी तक हमने देखा नहीं है, ये जब अगली बार रिफंड आएंगे तो पता चलेगा कि कैसे होगा. बट मेरे हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आएगा. पहले बैंक अकाउंट में जो आपने लिखा उस पे भेजेंगे, उस पे नहीं गया तो दूसरे पे भेजेंगे. बट ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ओनली फॉर थियोरेटिकल पर्पसेस. बट मैं उनसे पूछ लूंगा CPC वालों से दैट हाउ दे विल डू इट. बट आई बिलीव सर कर दिया उन्होंने केस में, हमारे केस में ये स्पेसिफाइड इलाहाबाद बैंक, वहां पे क्रेडिट नहीं हुआ, थर्ड को फिर सिटी बैंक में हो गया. अच्छा, चलिए सर, वो मतलब मेरे को ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में उनसे पूछ लूंगा कि उन्होंने क्या. डेफिनेटली पूछिए सर. डिसीजन टू बी टेकन बाय SBI. इनकम टैक्स वाले तो भेज देंगे उसको वो SBI को करते हैं, SBI आगे से भेज रहा है सर. हाँ, तो देखते हैं सर, पूछ लेंगे, कोई ना कोई तो रूल बनाया होगा उन्होंने. बट मेरे को अभी पता नहीं है उस रूल के बारे में. आई डू नॉट नो अबाउट दैट रूल, बट आई विल लेट यू नो. In case of professional income, if my profit is less than 50 lakh rupees, can I file ITR 3 without tax audit? क्या बोल रहे हैं सर? 50%. In case my profit, please elaborate opt in, opt out for ITR 4 under 44 ADA and tax audit requirement. अच्छा सर,
माया अरोड़ा जी, पहली बात तो ये है कि 44ADA जो प्रोफेशनल वाला सेक्शन है उसमें कोई ऑप्ट इन ऑप्ट आउट का ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जिस साल चाहे ले बेनिफिट, जिस साल नहीं चाहना चाहे ना ले। जो 5 साल की रिस्ट्रिक्शन है या डिबार है वो सिर्फ 44AD के लिए है, ADA के लिए नहीं है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है कि आपकी इनकम 50% से कम आप दिखाना चाहते हैं तो क्या आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है? अब इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा पहले कि क्या आपके जो इनकम है वो 50 लाख से कम है या ज्यादा है। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो मेरे हिसाब से आपको टैक्स ऑडिट इन ऑल केसेस कराना है। 44ADA आप पे अप्लाई ही नहीं करता, देन यू हैव टू गेट योर अकाउंट ऑडिटेड। अब आपकी इनकम अगर 50 लाख से कम है, if it is less than 50 lakhs, then you have an option to either show your income at 50% and pay tax accordingly. अब क्वेश्चन आया कि जी मैं 50% से कम दिखाना चाहता हूं। लेट्स से मेरी इनकम 40 लाख रुपए, मेरी रिसिट्स जो है वो 40 लाख रुपए है और मैं उस 40 लाख के ऊपर 20 लाख रुपए मेरा 50% प्रॉफिट बनता है, बट मैं अपना प्रॉफिट 10 लाख रुपए दिखाना चाहता हूं या मैं 12 लाख रुपए, मैं ये नहीं कहूंगा दिखाना चाहता हूं, मैं ये कहूंगा कि मेरा प्रॉफिट 10 लाख या 12 लाख है। तो क्या मुझे टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है या मैंडेटरी नहीं है? सर इसके ऊपर दो व्यू हैं। पहला व्यू ये है कि 44ADA is mandatory. If you believe that 44ADA is mandatory, then in that case, whenever you have income less than 50% of the gross receipt, you have to get your accounts audited in all cases. However, there are different views with different authors which say that 44ADA is an optional section and it is a beneficial provision and one can opt for it, one may not opt for the same. तो अगर आप उसको आप लेते हैं, उस बेसिक क्रोनोलॉजी और थ्योरी को लेके चलते हैं तो इन दैट सेंस आपको ऑडिट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल व्यू बताता हूं जो सीपीसी ले रही है। सर आपके इनका अगर आपकी रिसीट 40 लाख है और आप 12 लाख रुपए की इनकम डिक्लेयर करते हैं, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है उसमें डाल देते हैं, बैलेंस शीट डाल देते हैं, पीएनएल डाल देते हैं और आप ऑडिट नहीं कराते तो कोई डिफॉल्ट नहीं आ रहा, आपकी रिटर्न प्रॉपर्ली प्रोसेस हो जाएगी। So they are going with the second view which says that whatever ADA is optional. However, I personally believe this is wrong. My personal view is that whatever ADA is mandatory and you should get your account audited. That is better. But CPC आज की डेट में ऑप्शनल मानते हुए आपकी रिटर्न प्रोसेस कर देगी, कोई पेनल्टी नहीं लगाएगी, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको क्या लेना है माया जी, ये आप देख लीजिए। यू नो योर एसएससी बेटर देन एनीबडी एल्स, तो उसके बेसिस पे आप इसको कर सकते हैं। चलिए सर आगे चलते हैं। राकेश भार्गव जी का क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR 6 वेयर फॉर्म 10 एंड 10B इज रिक्वायर्ड टू। सर ड्यू डेट जो है इसमें आपकी जो है 30 नवंबर है इस साल के लिए, उसको हम ऑडिटेबल एसएससी मानते हुए उसको 30 नवंबर ही करते हैं। हाउएवर इन सम केसेस ऑफ सोसाइटीज का जो हम रिटर्न भर रहे हैं उसमें वो कई के प्रोसेस होते समय दिक्कत आ रही है कि वो कह रहे हैं जी ड्यू डेट जुलाई थी और आपने सितंबर तक भर दिया, चाहे ऑडिट सोसाइटीज एक्ट में हुआ है, तो उसके लिए उनसे बात चल रही है। सीपीसी हैव रिटर्न फॉर अ क्लैरिफिकेशन टू सीबीडीटी, तो उसके बाद वो जो है वो वाले रिटर्नों को वो ठीक कर देंगे, बट वो एक है ओनली फॉर दी सोसाइटीज। अदरवाइज अगर आपने 10B फाइल किया है या 10 फाइल किया है तो उस केसेस में तो वो सितंबर है ही है, उसमें कोई किसी तरह का कोई इशू ही नहीं है। उन केसेस में जहां 10 और 10B नहीं फाइल किया वहां पे एक इशू आ रहा है और उसके लिए भी वो आपको बहुत जल्द वो ठीक हो जाएगा, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। चलें सर आगे चलें। प्लीज ऑल्सो सजेस्ट द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ITR वेयर मैट सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड। सर मैट है तो सर कंपनी होगी तभी मैट है, और कंपनी होगी तो उसका ऑडिट होता ही होता है। तो इन दैट केस उसकी जो ड्यू डेट है वो वैसे ही सितंबर है। फॉर दिस ईयर इट इज एक्सटेंडेड टू नवंबर एंड इट वे में फर्दर एक्सटेंड जब भी सीबीडीटी एक्सटेंड करेगी। बट एक चीज इस बार इंपॉर्टेंट है कि ऑल रिपोर्ट्स वेदर इट इज टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, मैट सर्टिफिकेट, ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट, 10A 10B रिपोर्ट, ATIA रिपोर्ट, जितनी भी हमारे फॉर्म्स फाइल होते हैं जहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, all these reports has to be filed before 30th October itself, क्योंकि वो 30 days प्रायर हमें फाइल करना है और वो 31 अक्टूबर तक आप फाइल कर दें, वरना आपका वो डिले माना जाएगा अगर डेट एक्सटेंड नहीं हुई। अभी भी हमारे पास 18 दिन का टाइम है, आप जितना काम करना चाहे करें, जब तक डेट एक्सटेंड नहीं होती तब तक हमारे लिए लास्ट डेट जो है वो अक्टूबर ही है। चले सर आगे चलते हैं। अजय कुमार गुप्ता जी का क्वेश्चन है,
ITR फाइल्ड ऑन 5/10/2019, अच्छा पिछले साल उन्होंने अक्टूबर में करी थी, बट 10B फाइल्ड ऑन 31/10/2019। सर कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास एक जो है एमनेस्टी स्कीम आई है जिसमें आप जो है एग्जम्पशन, CIT एग्जम्पशन को कॉन्डोनेशन के लिए लिखें और वो आपको कॉन्डोन कर देंगे। जिनकी ऑलरेडी पेंडिंग है उनकी होने वाली है। मेरी CIT साहब से मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि उन्होंने कहा ये कोविड का चल रहा है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, बट दे आर डूइंग द कॉन्डोनेशन। तो आप जो है अजय जी, आप इमीडिएटली जो है एप्लीकेशन फाइल करें कॉन्डोनेशन की फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। CBDT have already given direction to the CIT exemption to condone all 10B filings or 10BB filings done after the due date of filing of return or after filing of return, उन सब की कॉन्डोनेशन हो रही है, तो वो आप फाइल करें CIT exemption को, आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट सर, किशन गुप्ता जी, ड्यू डेट फॉर टैक्स ऑडिट इन केस ऑफ TP केसेस। सर दोनों, सर TP ऑडिट भी 1 अक्टूबर है, कोई चेंज नहीं है इस साल। हाँ अगले साल जो है वो 30 सितंबर और 30 नवंबर है, बट इस साल क्योंकि दोनों डेटें सबस्यूम्ड हो गई एक साथ, तो 30 अक्टूबर में आपको टैक्स ऑडिट एज वेल एज ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट करना है। रिटर्न जो है 30 नवंबर तक फाइल करनी है। नेक्स्ट सर, वैशाली विनोद जी का क्वेश्चन है, LTCG शेड्यूल एंट्री फॉर क्लाइंट्स आर टू मेनी, इज देयर एनी चांस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रिक्वायरमेंट जस्ट लाइक लास्ट ईयर? सर वो ऑलरेडी आ चुकी है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये बेसिकली बात कर रहे हैं कि जो LTCG और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में जो हमें डिटेल डालनी है शेयर्स की, लिस्टेड शेयर्स की और म्यूचुअल फंड की, वो स्क्रिप्ट वाइज डालनी है। सर जो ऑलरेडी एक एग्जम्पशन आ चुकी है कि आप जहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वहां पे स्क्रिप्ट वाइज डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में आपको स्क्रिप्ट वाइज डालनी है। और उसके अंदर कोई एग्जम्पशन अभी नियर फ्यूचर में दिखती हुई नहीं दिखाई दे रही मुझे, क्योंकि वो एक स्क्रिप्ट को जो है वो क्या नाम है ट्रैक करना चाह रहे हैं, प्लस उसमें वो जो 31 जनवरी का उन्हें जो है ग्रैंड फादरिंग देना है वो बिना ISBN कोड के, बिना स्क्रिप्ट के ISBN के वो नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए उनको जो है ये चाहिए ही चाहिए। आज की डेट में ऐसी कोई प्रपोजल नहीं है CBDT का कि इस पे कोई एग्जम्पशन मिलेगा, या ऐसा कोई अभी तक नहीं है, आगे हो जाए तो मैं कह नहीं सकता सर, आज तक तो नहीं है। नेक्स्ट है सर, विद्या खन्ना जी का दोबारा क्वेश्चन आया है, ओल्ड स्कीम इफ एन इंडिविजुअल इज एन एम्प्लॉई सो एज वेल एज डू बिजनेस कैन ही क्लेम NPS डिडक्शन अंडर 80 CCD अंडर सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी दैट इज 20% ऑफ सैलरी ऑटो? बिल्कुल ले सकते हैं सर, किसने मना किया? चलें सर आगे चलें जी। मोहित गुप्ता, हाँ मोहित गुप्ता जी का क्वेश्चन है, हाउ टू शो लॉस ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट वेयर द टर्नओवर। सर ये मोहित जी जरा अनम्यूट करना मोहित जी को। सर ये ना दिखा मत देना अपने रिटर्न में, आपके SSC को जेल हो जाएगी। All non-residents including NRIs are prohibited to do intraday transactions, और अगर आपका ब्रोकर ने ये अलाउ किया है तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो या तो आपके NRI ने अपने ब्रोकर को बताया नहीं कि मैं नॉन रेजिडेंट हो गया, क्योंकि सेबी के ही बड़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं कि नॉन रेजिडेंट्स एज वेल एज NRIs आर नॉट अलाउड टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग, वो कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए नॉर्मली क्या होता है, वो लोग अपने 2 अकाउंट खोल के रखते हैं, एक हस्बैंड का एक वाइफ का। अगर इंट्राडे करनी भी होती है तो हस्बैंड में सेल करके वाइफ में परचेज करते हैं या रिवाइस वर्सा करते हैं, उनको अलाउड ही नहीं है। तो सर ये आपका क्वेश्चन ही गलत है, ये हो नहीं सकता। बट फिर भी अगर ऐसा है तो मैं दोबारा आपको सोल्यूशन बता देता हूं। आप ये कह रहे हो कि नॉन रेजिडेंट की इंट्राडे ट्रेडिंग है और टर्नओवर 1.8 लाख है और लॉस जो है वो 80 लाख है, तो कोई बात नहीं सर, आप उसका जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो P&L और बैलेंस शीट बना दो, उसका प्रॉफिट निकाल लो, और उसमें जो BP शेड्यूल है, BP शेड्यूल में आपसे पूछता है कि आउट ऑफ द प्रॉफिट हाउ मच इज स्पेकुलेटिव प्रॉफिट, आप पूरा का पूरा उसमें डाल दो, हो गया स्पेकुलेटिव का आपका डिस्क्लोजर। बट एक बार चेक कर लेना ये चीजें, कहीं ऐसा ना हो कि इनकम टैक्स के चक्कर में कहीं और फंस जाओ। चलिए सर आगे चलते हैं। Anonymous है सर, whether expense can be claimed against salary from a CA firm like legal expense, depreciation of work। सर देखिए, as per law, legally yes you can claim it, so there is no bar on a partner of a firm
in claiming the expenses against the salary income from the firm which have received. So as far as law is concerned, आप claim कर सकते हैं और बहुत सारे लोग करते हैं. And I know many big firms के जो partners होते हैं वो generally claim करते ही हैं, क्योंकि उनको जो है फॉर्म से अगर गाड़ी नहीं मिली हुई, अगर उनको फॉर्म से मोबाइल फोन नहीं मिला हुआ, लैपटॉप नहीं मिला हुआ, या उनको बहुत सारी चीजों की रिइंबर्समेंट नहीं मिलती, विच आर बिजनेस एक्सपेंडिचर, दे यूज्ड टू क्लेम इट आउट. सो उन केसेस में वो करते हैं. आपको कहीं पे भी प्रोहिबिशन नहीं है, पर उनका जनरली केस 100% हर साल स्कूटी में आता ही आता है. तो उसको देखते हुए आप देख लीजिए कौन सा बेनिफिट है, बट कर सकते हैं, कहीं पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. चलें सर आगे चलें. कीर्ति वार्ष्णेय. कीर्ति जी का क्वेश्चन है, इफ देयर इज अ लॉस इन एफ&ओ द टर्नओवर इज लेस देन 1 करोड़. सर कोई मैडम कीर्ति जी कोई टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है. मैं तो अब कह रहा हूँ 5 करोड़ तक भी कराने की आवश्यकता नहीं है, बट आप उसका P&L अकाउंट बना दे, बैलेंस शीट बना दे, चाहे सिर्फ एफ&ओ बिजनेस का बना दे, सारी चीज सारा का ना भी बनाए, सिर्फ एफ&ओ बिजनेस की बैलेंस शीट और P&L बना के उसमें डाल दें फॉर्म में, ITR में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी रिटर्न प्रॉपर्ली प्रोसेस होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Which ITR to be filed if agriculture income is more than 5,000? कुछ नहीं है, आप ITR 2 भरें अगर बिजनेस इनकम नहीं है, और अगर बिजनेस इनकम है तो ITR 3 भरें. तो दिस टू कुलकर्णी जी आपको ये जो है भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सीमा जी का क्वेश्चन है, my husband filed my deceased father-in-law's return as legal hearer for assessment year 2018-19. Refund determined but refund not received. Reason being that bank account did not match with the PAN. What is the resolution to get the refund? मैडम इस केस में मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको है ना एक बैंक ऑथोराइजेशन फॉर्म साइन करके देना पड़ेगा CPC को. तो एक CPC की ईमेल आईडी पे आप अपना पैन नंबर देते हुए और डिजीज पर्सन का पैन नंबर देते हुए प्लीज सेंड अ मेल टू CPC TDS, और उस CPC TDS को आप CPC TDS कह रहा हूँ, CPC बैंगलोर, और वहां से फिर आपको एक फॉर्म आएगा बैंक का ऑथोराइजेशन फॉर्म. उस बैंक ऑथोराइजेशन फॉर्म को भर के आपको हार्ड कॉपी भेजनी पड़ेगी. वो आप भेज देंगे तो ये रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा. मतलब आपके हस्बैंड के अकाउंट में क्रेडिट होगा, डिजीज के अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा. तो ये इसका एक प्रोसीजर है. वो आप प्रोसीजर गूगल आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं, गूगल से भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप मेल करें, वो आपको ऑटोमेटिकली भेज देंगे. So there is a process to be followed in those cases. चलिए सर आगे चलते हैं. ईशा गुप्ता. In case of आजकल शॉर्ट फॉर्म बहुत लिखते हैं ना सर. In case of penalty settlement of अच्छा विवाद से विश्वास स्कीम है 271(1)(c) under विवाद से विश्वास annexure C needs to be filed. In general information it is compulsory to fill schedule A or D. Both are not applicable in my case if SSC do not file schedule A or section D while uploading. There is some error please. मैडम ऐसा कोई I do not think कि ऐसा कोई ऑप्शन या ऐसा कोई प्रोविजन है. आप प्लीज मेरे से ऑफलाइन इस बात को डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि मैंने खुद जो है खाली आपकी पेनल्टी अपील अगर है तो उसकी आप इस सेटलमेंट की बात कर रहे हैं तो वो अलाउ कर रहा है, मैंने खुद फाइल किए हैं. आई थिंक आप कोई मिस्टेक कर रहे हो कहीं पे, आपने कोई सिलेक्शन गलत हो गया, तो आप मेरे से इंडिविजुअली बात कर लीजिए, मैं देख के आपको बता दूंगा कि आप कहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हो. तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ द फॉर्म, इट इज अ प्रॉब्लम दैट यू आर मे बी सिलेक्टिंग सम रॉन्ग थिंग इन द फॉर्म इटसेल्फ. तो वो अलग से कर लेंगे. कीर्ति जी का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आया है. इन वन केस पेंशन ऑफ अ डिजीज एम्प्लॉई given to her husband and TDS is deducted under section 192 and given 50,000 standard deduction instead of family pension. Further, the husband also receives his pension from same employer and his TDS also deducted under 182 and given 50,000 standard deduction in his form 16. What we should do? मैडम देखिए, पहली बात तो फैमिली पेंशन के अंडर अगेंस्ट जो है 50,000 की जो डिडक्शन जिन्होंने भी दी है वो गलत दी है. उनको 192 में जब वो उनकी रिटर्न प्रोसेस होगी TDS की, वो वैसे ही वहां पे लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी. बट फिर भी अगर आपको दे दी है तो आप इस 50,000 के ऊपर आप उसको ना आप एक ही बार क्लेम करें 50,000, और उसके बाद जो टैक्स बनता है उसको टैक्स को जमा कराएं और आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं. दैट इज अलाउड. आप उसको डबल डिडक्शन नहीं ले सकते. ये तो वही केस होगा कि पिछले एम्प्लॉयर ने भी 80C दे दी और नए एम्प्लॉयर ने भी 80C दे दी, तो क्या आप 3 लाख थोड़ी ले लोगे 80C जो आप एप्लीकेबल या
जो है उतना ही लेंगे ना, जितना लॉ परमिट करे, तो एक ही बार आपको 50,000 की डिडक्शन मिलेगी, आप फॉर्म 16 को भूल जाएं। वैसे वो फैमिली पेंशन के अगेंस्ट फॉर्म 16 50,000 मिल नहीं सकता, बट फिर भी आई डोंट नो क्या क्यों मिला है, तो वो आप फिर भी आप रिटर्न भरते समय एक ही बार लें। गंभीर जी का क्वेश्चन है, सर प्लीज एक्सप्लेन टर्नओवर ऑफ एफ&ओ फॉर टैक्स, हाउ टू कंप्यूट, हाउ टू कैलकुलेट टर्नओवर ऑफ एफ&ओ इन केस ऑफ इंट्राडे ट्रांजैक्शन। सर इसके लिए आप गाइडेंस नोट ऑन टैक्स ऑडिट बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया खोलें, वहां पे बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है जो भी आपका सेटलमेंट प्राइस है, मतलब जितने पे आपने फ्यूचर खरीदा और जितने पे आपने बेचा, उसका जो डिफरेंस है, whether it is a gain or a loss, aggregate all the gain and loss and then whatever coming is the turnover for the purpose of tax audit or for calculating the turnover for the tax audit, और आप उसी टर्नओवर के बेसिस पे उसके P&L बना के आप उसका बैलेंस शीट और P&L बनाए इन सच अ वे दैट आपका जो नेट प्रॉफिट और लॉस है वो आपका वो आ जाए जो उसका एक्चुअल गेन और लॉस है। ये उनकी आई थिंक ये उनकी यूटिलिटी गलत है जो उन्होंने इस तरह से किया हुआ है, बिकॉज इनकम टैक्स वाला नहीं कहता ये कि टर्नओवर ये है, ओनली हमारा इंस्टीट्यूट बताता है कि एफ&ओ में कैसे टर्नओवर कैलकुलेट करनी है। तो इसके ऊपर हमने 1-2 रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, अभी तक उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है, बट तब तक नहीं निकलता तब तक आपको यही करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट, एनोनिमस, due date filing income tax return is 30th November for the assessment year 2021 and tax due is 2.5 lakhs. अच्छा जी, we are filing ITR today. Software is showing interest under section 234A for 1 month. Is it correct? No sir, not at all. आप अपने सॉफ्टवेयर वाले को बोलो ठीक करे, आपका सॉफ्टवेयर गलत है। चले सर आगे चलते हैं। राजेश जी हटाना 1-2 क्वेरी। सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा ना सर, इसलिए दिक्कत आ रही होगी। Relief 89, relief under section 89(1) not claimed in the original return. Later form 10E filed for claiming relief under 89 and after filing 10E file his revised return. In this case employee will be entitled for relief. बिल्कुल मिलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको रेक्टिफिकेशन करके अपील में मिलेगा, बट मिल जाएगा आपको रिलीफ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, अगर लीगली अलाउड है तो मिलेगा। नेक्स्ट, anonymous question है again, an SSC is a senior citizen having interest income as regular source of income, but he got some small commission income every month in a chain selling system. कोई बात नहीं, मिलने दो। Now he has to file ITR 3 as commission is business income. कोई जरूरी थोड़ी है सर, आप उसको कमीशन को अदर सोर्स में लेके अदर इनकम में भी ले जा सकते हैं, अगर वो उसका बिजनेस नहीं है तो इट इज अदर सोर्स इनकम। कोई जरूरी नहीं है कि कमीशन इनकम बिजनेस हो, बट हाँ अगर उसका काम ही भी कमीशन इनकम अर्न करना है, इट इज हिज बिजनेस, देन ओनली यस ITR 3 हैज टू बी फाइल्ड। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ ही हैज टू फाइल ITR 3 एज कमीशन। इन दिस केस व्हाट बैलेंस शीट is to be prepared even if whole commission income is shown as profit, can he show commission income under others? मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सर, आप दे सकते हैं उसमें। चलिए आगे चलते हैं, मेरे पढ़ाई नहीं, मैंने क्वेरी पहले ही बता दिया आंसर। चले सर आगे, आशीष बंसल जी का क्वेश्चन है। राजेश जी जरा हटाओ 1-2 क्वेरी। आशीष बंसल जी का क्वेश्चन है, इन केस ऑफ इंट्राडे एफ&ओ टर्नओवर इज इक्वल टू नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। नहीं सर ऐसा नहीं है। इन केस ऑफ देयर इज अ लॉस द सिस्टम डज नॉट एक्सेप्ट नेगेटिव फिगर इन द फॉर्म, हाउ टू रिप्रेजेंट इट? सर जो आपकी टर्नओवर है वो मोड फॉर्म में एक्चुअल आएगी। फॉर एग्जांपल आपका टोटल एफ&ओ का लॉस ही अगर मान लीजिए 50 लाख रुपए का हुआ, तो 50 लाख रुपए आपकी टर्नओवर है, आप परचेज में डालो 1 करोड़ रुपए, नेट इंपैक्ट 50 लाख का लॉस आ जाएगा। दैट इज हाउ यू हैव टू डू इट, देयर इज नो अदर ऑप्शन अवेलेबल इन दिस केस ऑफ एफ&ओ। रेनू जगदीश जी का एक क्वेश्चन आया है, when we file script details of long term capital gain in form ITR 2 in the utility of income tax site and profit is less than 1 lakh rupees, profit is less than 1 lakh rupees, but utility asks rate of tax 10% or 20%, whereas less than LTCG is tax free when we free, then what to do? सर इनका क्वेश्चन ये है कि इनका मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए से कम है और ये डिटेल भरते हैं तो वो टैक्स कैलकुलेट कर देता है, जबकि लिमिट 1 लाख है, 1 लाख से तो नीचे टैक्स होना ही नहीं चाहिए। अच्छा वो आप
112A वाली बात कर रहे हैं ना सर? जी जी जी, 112। सर 112A के अंदर आपको आना ही तब है जब 1 लाख से ज्यादा हो। तो 112 में जब आपका 1 लाख से ज्यादा कैपिटल गेन है ही नहीं तो आना ही नहीं है, तो यहाँ पे आपको भरने की जरूरत ही नहीं है। EI शेड्यूल में भर दो, काम खत्म। कहाँ पर भरते सर इसको? EI शेड्यूल होता है ना, एग्जाम्ड इनकम, उन्होंने लिखा भी हुआ है। जी 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 जी। एग्जाम्ड इनकम में एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अलग से कॉलम है। हाँ है, बिल्कुल है। कॉलम में भर दो। ठीक है सर, ठीक है। चले जी आगे चलते हैं। इफ GTI इज बिलो टैक्सेबल लिमिट, if GTI is below taxable limit but tax refund what to mention in 139(1)? क्वेश्चन ही क्या है? नहीं 139(1) में क्यों मेंशन करना है? वो तो 7th प्रोवाइजो में जाएगी फिर रिटर्न। then 7th प्रोवाइजो is applicable to you। तो आप वो 7th प्रोवाइजो का you have to select one of the column कि आपका वो रिटर्न, वो जो है बिल, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल, फॉरेन ट्रेवल, वहां पे नो सिलेक्ट करो और आप 139(1) में ही जाएगी रिटर्न आपकी। बट वो 7th प्रोवाइजो आपको सिलेक्ट करना मैंडेटरी हो जाएगा, उसकी डिटेल और कुछ नहीं। आप नॉर्मल रिटर्न भरो, अगर आपके 1 लाख से ज्यादा नहीं है, उससे ज्यादा नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो सिलेक्ट करके आप रिटर्न फाइल कर दो। नेक्स्ट, सैलरी इनकम प्लस बिजनेस इनकम प्लस प्रोफेशनल इनकम देन ITR 4 कैन बी फाइल्ड। मैडम मैंने तो पहले ही बताया आपको विद्या जी, आप भर सकते हैं ITR 4 अगर आपकी सैलरी इनकम, अदर सोर्स इनकम और हाउस प्रॉपर्टी इनकम है। सिर्फ कैपिटल गेन इनकम और रेम्यूनरेशन फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, ये 2 चीजें नहीं है तो आप ITR 4 भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राकेश भार्गव जी का क्वेश्चन है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर forfeited is revenue received taxable under the act since it was forfeited on account of डिफॉल्ट ऑफ कस्टमर। तो क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन कोई नहीं, चलो नेक्स्ट चलो सर। नहीं सर, इनकम लेने का है कि उसको इनकम लेना है कि नहीं लेना है? इनकम तो लेना ही है। वो तो सर क्लियर है, वो तो खुद ही लिख रहे हैं इनकम है। हाँ, तो इनकम तो लेना ही है। हाँ चलो नेक्स्ट चलो। सुभाष जी का क्वेश्चन है, इफ अ पार्टनर इज इन रिसिप्ट ऑफ रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़, सर नो टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड। ये क्वेश्चन जो है कई लोगों ने मेरे से पहले भी पूछा है कि अगर 1 करोड़ से ज्यादा है और वो पार्टनर का रेम्यूनरेशन है खाली, तो क्या उसका टैक्स ऑडिट होना है? मेरे हिसाब से कोई टैक्स ऑडिट नहीं होना, प्रोवाइडेड आप ITR 3 में प्रॉपर कॉलम में वो भरेंगे तो आपको कोई टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, बिकॉज दे आर नॉट ट्रीटेड एज रिसिप्ट्स। और अगर वो रिसिप्ट मानेंगे तो फिर तो 44AD भी देना चाहिए, तो वो रिसिप्ट का पार्ट नहीं है, इसलिए टैक्स ऑडिट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और आता है कि अगर मान लीजिए फर्म का टैक्स ऑडिट हो गया तो क्या पार्टनर का भी टैक्स ऑडिट करना मैंडेटरी है? आंसर इज नो। अगर फर्म का टैक्स ऑडिट हो गया तो पार्टनर का टैक्स ऑडिट करना कोई मैंडेटरी नहीं है, बट अगर पार्टनर की इंडिविजुअल लिमिट्स में फॉल करता है वो, तो वो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं कराना पड़ेगा। आशीष बंसल जी क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट have already done recovery from bank account number, challan details is available for such recovery, how to fill challan detail? सर जो आपसे रिकवरी करी है वो जिस भी असेसमेंट ईयर की होगी उस असेसमेंट ईयर में आपका जो है वो चलान नंबर और डिटेल होगी। जो आप अपना VVS का फॉर्म फाइल करेंगे, उस VVS के फॉर्म में ऑलरेडी टैक्स पेड में चलान नंबर डेट मांगता है, तो वहां पे वो चलान वहां पे डाल दीजिए तो वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा आपका डिटेल, तो आपको कोई और सेपरेट चलान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर इफ I am a second joint holder with my family member, then also I have to mention the account number. Yes, आप चाहे जॉइंट होल्डर हो, 3 होल्डर हो, 4 होल्डर हो, अगर बैंक अकाउंट एक्टिव है और आप उसमें वन ऑफ द सेक्रेटरी हो, वन ऑफ द ओनर हो, तो आपको उस बैंक अकाउंट की डिटेल देना मैंडेटरी है, चाहे आप उसमें कोई ट्रांजैक्शन करते हो या नहीं करते, सारी ट्रांजैक्शन की डिटेल आपको देनी पड़ेगी, बट इट हैज टू बी एन ऑपरेटिव अकाउंट। इंट्राडे लॉस टू बी रिपोर्टेड अंडर स्पेकुलेटिव बिजनेस, यस, फॉर दिस 44AD कैन नॉट बी फाइल्ड। क्यों? कहां लिखा है कि स्पेकुलेटिव बिजनेस के लिए 44AD फाइल नहीं हो सकता? फॉर एनी काइंड ऑफ अ बिजनेस यू कैन फाइल 44AD, तो आप कर सकते हैं। चलिए आगे। An individual in UK receives salary income from UK for first 9 months of previous year, and after he comes to India receives 3 months salary from India. What will be the treatment of UK salary? Not taxable in India, क्योंकि अगर 9 महीने वहां पे रहा है तो 182 days वहीं पे है, नॉन रेजिडेंट है इंडिया का,
तो इंडिया में किसी तरह का कोई टैक्सेशन नहीं लगेगा इस 9 मंथ सैलरी पे, और आपको अपनी आईटीआर में डिस्क्लोज करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है. नो नीड टू डिस्क्लोज एनीवेयर इन द आईटीआर एज वेल. पवन चटर्जी का क्वेश्चन है, कैन प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन डू ऑप्शन ट्रांजेक्शन इन हिज नेम? सर आप कर लो, लेकिन वो बिजनेस मानेगा. इंस्टीट्यूट में किसी ने कंप्लेंट कर दी तो सीओपी कैंसिल हो जाएगा. अवॉइड करो, ना करो. आई बिलीव इट शुड नॉट बी डन लाइक दैट. हाउएवर देयर माइट बी सर्टेन केस जहां पे आपने अगर कोई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम में दिए हुए हैं तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बट एडवाइजेबल इज नॉट टू डू इट. आप वाइफ के अकाउंट में करो ना सर, क्या दिक्कत है? आप अपने में क्यों करना चाहते हो? एचयूएफ में कर लो. नेक्स्ट, in case if NRI account has been closed. NRI account, सर पहली बात तो NRI अकाउंट नाम का कोई चीज ही नहीं होती, या तो NRO अकाउंट होता है या NRE होता है. तो मैं ये मान के मैं दोनों में आंसर देता हूँ. has been closed, refund is there. How can the refund be claimed as there is no other bank account? सर आप जो है असेसिंग ऑफिसर के पास जाएं, उनके हाथ पैर जोड़े और उनको कहें कि आप प्लीज हमें हमारे एड्रेस पे एक चेक भेज दें, और उसके बाद आप किसी भी बैंक में अप्रोच करें और उस बैंक को एक एस्क्रो अकाउंट खोल के वो आपके फॉरेन बैंक अकाउंट में रेमिटेंस कर देगा. तो ये आपका अलाउड है. और इसका एक और तरीका ये है कि अगर आपकी रिटर्न रिवाइज हो सकती है तो उसमें आप फॉरेन बैंक अकाउंट डाल के भर दें, और वो आपको जो है, और एड्रेस इंडिया का भरना, राजेश जी के ऑफिस का एड्रेस भर देना, इनके ऑफिस में वो चेक आ जाएगा. उसके बाद जो है वो एक बैंक के पास जाएं, एस्क्रो अकाउंट में वो चेक क्लियर कराएंगे, अपने चार्जेस काट के, बाकी उसके फॉरेन बैंक अकाउंट में पैसा भेज देंगे. इससे ज्यादा डिटेल चाहिए तो कॉन्टैक्ट मी अलोंग विद द चेक ऑफ माय प्रोफेशनल फीस. चलिए सर, मजाक कर रहा हूँ, आप पर्सनली प्लीज बात कर लीजिएगा, मैं आपको हेल्प कर दूंगा कैसे होता है. और सारे बैंक जितने हैं, HSBC है, एक्सिस है, HDFC है, कोटक है, they all open a escrow account in such cases, and they will get the check cleared in that escrow account, and from that account they send this remittance to a foreign bank account. तो वो एक प्रोसेस है, वो आप फॉलो कर सकते हैं. चलिए सर आगे चलते हैं. PF withdrawal TDS deducted 10%, head should be. सर PF से विड्रॉ तो सैलरी होगा, तो सैलरी में लेके जाए और उसका हेड भी सैलरी सिलेक्ट कर लेना. नेक्स्ट, कैन अ पर्सन हैज इनकम मोर देन वन प्रिजर्वेटिव बिजनेस? यस ही कैन. मैं तो आपको एक और आगे कर रहा हूँ, एक पर्सन की 44 AD और ADA दोनों हो सकती है इनकम, वो भी पॉसिबल है. तो मैं जो है स्कूल में पढ़ाता भी हूँ, उससे मेरे को इनकम आती है, वो मेरी 44 AD की इनकम है. मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट वालों को पढ़ाता हूँ, CA को पढ़ाता हूँ, वो मेरी 44 ADA की इनकम है. मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ, वो भी 44 ADA की इनकम है. तो एक से ज्यादा प्रिजम्पटिव इनकम हो सकती है. साथ में मेरे ट्रक भी चलते हैं, मैं अपने 2 ट्रक लेके लगा रखे हैं लाइन पे. अब जगदीश जी कह रहे हैं ट्रक चला रहे हो, बिजनेस कर रहे हो और प्रैक्टिस. मैंने ये थोड़ी कहा कि मैं प्रैक्टिसिंग COP होल्डर हूँ. तो मैं इंजीनियर भी हो सकता हूँ, मैं डॉक्टर भी हो सकता हूँ. तो हो सकते हैं सर, मोर देन वन प्रिजम्पटिव इनकम हो सकती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. If commission income is shown in the income from other sources and TDS deducted under 194 Act, can CPC ask any objection? नहीं सर, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. अभी उन्होंने एक ऑप्शन दे दिया है लास्ट ईयर से कि आप अगेंस्ट ऑल TDS हेड सिलेक्ट कर सकते हैं. माय रिक्वेस्ट इज कि वो आप वहां पे अदर सोर्सेज का हेड सिलेक्ट कर लीजिए. नॉर्मली 194H में जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बिजनेस इनकम सिलेक्ट करते हैं. यू हैव टू चेंज दोज हेड टू अदर इनकम, अदर सोर्स आप डाल देंगे तो आपको CPC वाले कोई दिक्कत नहीं कहेंगे, आपको पूरा क्रेडिट देंगे और आपको थैंक यू वेरी मच भी बोलेंगे. नेक्स्ट, रेणु जी का दोबारा क्वेश्चन आ गया. सर्विस प्रोवाइडर मेंटेन्स अकाउंट ऑन एक्रूअल बेसिस बट रिसीवर ऑन कैश बेसिस. सो इनकम शोन इन असेसमेंट ईयर 2021 बट TDS इन 21-22. सर ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी CPC वालों को अवगत करा दिया है. उन्होंने मेरे से एक नोट मांगा था इसके ऊपर. अनफॉर्चुनेटली मैं वो नोट बना के CIT साहब को नहीं दे पाया आज तक, बट आपने याद दिला दिया कि वो नोट मुझे उनको भेजना है.
तो एक नोट देके मैं उनसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक ऑप्शन दे दें जहां पे मेरी इनकम ऑलरेडी मैंने दिखा दी है, बट टीडीएस अगर सब्सिक्वेंट ईयर में कटा तो उसमें मुझे वो टीडीएस अलाउ होना चाहिए। तो आई हैव टू गिव अ नोट टू सीपीसी, बेस्ड ऑन दैट दिस विल आल्सो बी डन, बट फॉर द टाइम बीइंग आप इस टीडीएस को क्लेम कर लें। जो होगा वो 142, 143 बने का जब मिसमैच आएगा या आपको नोटिस आएगा, उसमें आप ये लिख दीजिएगा कि पर्टेनिंग टू दिस द इनकम हैव ऑलरेडी शोन इन 2021। Can a HUF of a CA can do accounting and consultancy job in income tax? सर ये है कौन? सर आप HUF के मेंबर हैं, आप HUF के करता हैं, अगर आप ही उसका ऑडिट भी कर रहे हैं, कोहली साहब कह रहे हैं, आप हो क्या कोहली साहब? HUF बिजनेस कर सकती है, प्रोफेशन नहीं कर सकती, फंडामेंटल क्वेश्चन है इस टाइम। सर वो कह ही नहीं रहे प्रोफेशन है। सर अकाउंटिंग इज नॉट अ प्रोफेशन, वो तो कह रहे हैं मैं अकाउंटिंग कंसल्टिंग सर, ही सेड कंसल्टिंग सर, सुनो पूरी बात। कंसल्टिंग में प्रोफेशन कहाँ है सर? एक बार बताओ, मैं आज सीओपी नहीं होल्ड कर रहा, if I do not hold a COP, और मैं आज मान लीजिए राजेश जी मेरे पास कोई क्लाइंट लेके आए और उसको मान लीजिए मुझे जो है वो लेबर लॉ पे कोई कंसल्टेंसी देनी है। मैं टेक्निकल सर्विस दे रहा हूँ सर, प्रोफेशनल हूँ, मैं टेक्निकल सर्विस दे रहा हूँ सर। 3-4 क्वेश्चन और ले लो सर। प्रभु जी 3-4 क्वेश्चन और ले लो, बस छुट्टी करते हैं अब। नहीं सर बचे सर, सारे पूरे करेंगे, बचे ही 3-4 है। हाँ जल्दी ले लेते हैं। If joint account details to be given, then all parties both to be given in their ITR। हाँ सबके ITR में देने पड़ेंगे, और वहां पे एक ऑप्शन है कि सिंगल में है या जॉइंट में है, तो वो आप जॉइंट सेलेक्ट करके दे सकते हैं। कहना बिलेटेड रिटर्न भी रिवाइज, बिल्कुल हो सकती है, अब तो उन्होंने अलाउ कर दिया था लास्ट ईयर, बिलेटेड रिटर्न फाइल करिए, रिवाइज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। In case of ITR is filed under section 139(5) of IT Act for Provident Fund Trust created under PF Act, the income is exempted under 1025, whether the tax income tax is to be filed under 6 or 7 or 5। देखिए वैसे ही जो पीएफ ट्रस्ट और ग्रेच्युटी ट्रस्ट की रिटर्न्स फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, कोई भी फाइल नहीं करता, बट फिर भी आप करना चाहें तो ITR 7 में जाएगी, 5 में नहीं जाएगी। हांडा जी कह रहे प्लीज एडवाइस सर, क्वेश्चन तो पूछो। वही ऊपर वाला ही था, ऊपर वाला था, वो आपने क्लिक कर दिया ना, इसलिए पता नहीं चला। ITR 7 for the financial year 18-19 amount accumulated 20 lakhs and rightly shown in the return। Now ITR for financial year 19-20 the said amount sent where to show। सर आप उसमें जो एक शेड्यूल 1 बना हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि आपने जितने एक्यूमुलेशन प्रीवियस ईयर में करे, कितना अमाउंट था, उसका कितना आप ऑलरेडी खर्च कर चुके हो पिछले सालों तक, कितना ड्यूरिंग द ईयर खर्च किया और कितना आपका कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। तो उसमें जो ड्यूरिंग द ईयर वाला कॉलम है उसमें आप डाल दीजिए, वहां पे वो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। चले सर आगे। CPC order disallowed late payment of PF ESI contribution after the due date of this what is the solution of such order? No solution गंभीर जी, क्योंकि उन्होंने जो है वो CBDT को एक चिट्ठी लिख के उसके बारे में पूछा हुआ है। फिलहाल तो वो आपको भेजेंगे, आप उसको जो है 154 फाइल करो और उसकी CIT अपील फाइल करो, और उसके बाद अपील का ऑर्डर का इफेक्ट देंगे। जावा यूटिलिटी इज नॉट शोइंग फॉर फॉर्म 6, व्हाट टू डू? सर आप एक्सेल में भर लो, जावा नहीं है तो जरूरी है कि जावा में ही भरनी है? आ जाएगी सर, आ जाएगी जावा की यूटिलिटी। कौन सा आप आज ही भरने जा रहे हो रिटर्न? चलो सर कोई बात नहीं। वैशाली जी पूछ रही हैं, client has left job in January 19, he has not withdrawn any amount from his PF now this year for assessment year, now this year, that is in assessment year 1920 financial year 1920 होना चाहिए। Also he has not withdrawn any amount from PF, is the interest accrued on his contribution and interest on PF? ऐसा नहीं कोई टैक्सेबल नहीं है। अगर वो अप्रूव्ड फंड है तो नथिंग इज टैक्सेबल। लास्ट क्वेश्चन आया है सुनील जी का, सुनील बवेजा जी क्वेश्चन पूछ रहे 10 month salary received in India, 2 month salary outside India and tax paid overseas, whether salary received outside India has to be shown in ITR in India। सर ये तो प्रोफेशनल क्वेरी का क्वेश्चन है सर, बिना पैसे लिए नहीं बताऊंगा। सर generally in this case this person is a resident in India, and once he is a resident in India, then in that case his global income is taxable. In this scenario, whatever is the salary income for 2 months outside India also to be shown in the ITR
of India in the current year, and whatever taxes which have been deducted there, you have to take the credit of the foreign taxes. However, there is a catch in it. किस कंट्री की है, किस तरह से सैलरी इनकम मिली है, वो मेरे को बताओगे, उसका डीटीए पढ़ के मैं आपको एक अलग सॉल्यूशन दे सकता हूं जिसके तहत आपकी 2 महीने की सैलरी इंडिया में टैक्स नहीं होगी. बट फॉर दैट आई नीड टू know the country and I need to check the DTA of that country. So then only I can tell you. But generally speaking, इनका इंडिया में इंक्लूड होगी. कुछ DTAs में एग्जम्पशन है और उस एग्जम्पशन का बेनिफिट लेते हुए हम इसको टैक्स फ्री कर सकते हैं. बट जो अगर मिडल ईस्ट वाले हैं, यूएई वगैरह का केस है, बहरीन में तो हमारा DTA ही नहीं है. अगर मिडल ईस्ट का केस है, यूएई वगैरह का, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है. 63434. हाँ जी सर, राजेश जी, कोई और बची है या ऑल डन? Thank you, sir. Thank you very much for your wonderful deliberation on the subject and facing all the googlies of our member. And for a formal vote of thanks, I request Kohli sir, for a formal vote of thanks, sir. Thank you, sir. Avinashi, for such a beautiful deliberation. I think the more question and answers and queries you have solved and with the clarity is there. Basically, things are changing. They are getting all the information. End of the day, उन्होंने देखना है कि मेरा आधार लिंक हो जाए, मैं बेनामी प्रॉपर्टी बिजली वाले से ढूंढ लूँ, पानी वाले से ढूंढ लूँ. So gathering all the information. And foreign के अंदर TCS का भी खर्चा आ जाएगा. So that if I spend so much money on foreign exchange tour, वो भी by default पकड़ लेते हैं, छोड़ना तो है नहीं. So doing all the data mining as data man is keeping on improving. So entire changes, basically if you look at the entire schema of changes, is gathering more and more information down the line, sir. Thank you very much for the line deliberation. आने वाले टाइम में आप मान के